السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے چینل میں آپ سب کو ویلکم ہے ویورز اگر آپ لوگ MGT 111 یعنی انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن کی تیاری صرف ایک ہی لیکچر سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ اس ایک لیکچر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں اسکپ کروا دوں گی یا پھر جو ہے نا بہت ساری باتیں بتاؤں گی، نہیں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک ایک بات بتاؤں گی، لیکن جو ہے نا تھوڑا سا شارٹ فارم میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ویورز میں جو ہے نا پورا سلیبس ایک ہی ویڈیو میں نہیں کور کراؤں گی، بلکہ آپ کو پیپر میں آنے والے تمام MCQs لانگ شارٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ کون سے ٹاپک جو ہے نا لانگ کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، کون سے شارٹ کے لحاظ سے اور کون سے MCQs کے لحاظ سے۔ تو یہ والی باتیں جو ہے نا میں آپ کو لیکچر میں جو ہے نا ساتھ کے ساتھ بتاتی جاؤں گی، تو اس لیے میں آپ میری ویڈیو کو جو ہے نا کہیں سے اسکپ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو جو ہے نا کوئی بھی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے نا مس نہ ہو جائے۔ اور میں یہ آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ اسی ایک ہی ویڈیو کو دیکھ کر نا ویورز پیپر کی جو ہے نا بہترین سے بہترین پریپریشن کر سکتے ہیں، وہ بھی کم سے کم وقت میں، اور بہترین سے بہترین جو CGP ہے نا آپ لے سکتے ہیں۔ تو جو لوگ پیپرز کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بالکل بھی گھبرائیں نہیں، کیونکہ میں جو ہے نا آپ کے لیے سلیبس کو بہت زیادہ آسان بنا دوں گی، انشاءاللہ آپ سب کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے ویورز؟ اب ہم لیکچر کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ لیسن نمبر 1 ہے انٹروڈکشن کے بارے میں۔ تو آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبجیکٹ میں جو ہے نا کس چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے ویورز۔ اس سبجیکٹ میں جو ہے نا گورنمنٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا کس طرح پالیسی بناتی ہے اور وہ جو ہے نا ہم تک کس طرح سے پہنچتی ہے۔ یہ سبجیکٹ جو ہے نا ہمیں بتاتا ہے کہ سوسائٹی کے سسٹم کو نا سمجھنے کے بارے میں یہ والا سبجیکٹ ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے ویورز؟ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ بتایا گیا کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے، کہ اس کورس کا مقصد ہے عوام کو یہ بتانا کہ گورنمنٹ کس طرح سے کام کرتی ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہوتی کیا ہے۔ تو یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی کیا ہے، اور اس کے علاوہ پبلک مینیجر کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، آرگنائزیشن کی جو اسٹرکچر اور اسکلز جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم MGT 111 کے ٹاپک کے اندر پڑھیں گے، ٹھیک ہے ویورز؟ آگے جو ہے نا یہاں پہ اس کورس کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کورس جو ہے نا صرف گورنمنٹ جاب والوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہر انسان کے لیے یوزفل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے نا سمجھ آتی ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے نا کس طرح سے ریگولیٹ ہو رہی ہے، کس طرح سے چل رہی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے تو ہم سوسائٹی کو جو ہے نا مزید اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ہم جو ہے نا اپنی تھنکنگ کو زیادہ امپروو کر سکتے ہیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے، تو یہ چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے ڈیفائن کے بارے میں کہ پبلک جو ہے نا مطلب عوام، اور ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ انتظام یعنی مینج کرنا کسی چیز کو۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے عوام کی جو خدمت ہوتی ہے نا اس کے لیے کیا کیا سسٹم جو ہے نا چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مل جل کر جو ہے نا کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرنا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا POSDCORB کا لفظ یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے P سے پلاننگ، O سے آرگنائزنگ۔ تو یہ چیز MCQs کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ P سے کیا ہوتا ہے پلاننگ، O سے آرگنائزنگ، S سے اسٹافنگ، ٹھیک ہے؟ D کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹنگ، ڈائریکٹنگ مطلب کہ راستہ دکھانا یا گائیڈ کرنا، ڈائریکٹ کسی کو۔ CO کا مطلب ہوتا ہے کوآرڈینیٹنگ یعنی کہ سب کو مل کر جو ہے نا چلانا، اور R کا مطلب ہوتا ہے رپورٹنگ یعنی کام کی رپورٹ دینا۔ B کا مطلب ہوتا ہے بجٹنگ یعنی پیسوں کا جو ہے نا حساب کتاب رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے نا پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے نا کب شروع ہوئی تھی، یہ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ جب انسان جو ہے نا مل کر رہنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع ہوئے تھے نا، تبھی پبلک ایڈمنسٹریشن کی جو ہے نا پریکٹس اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے ایجپٹین پائرامڈس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ہزاروں لوگوں نے مل کر جو ہے نا ایجپٹین پائرامڈس کو بنایا تھا، اس لیے جو ہے نا ایک اسٹرانگ اس کی مینجمنٹ کی جو شروعات ہے نا وہ وہی سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ موہنجو-دڑو اور ہڑپا کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ان شہروں میں جو ہے نا ایک پری پلان جو ہے نا روڈ سب سے پہلے بنائے گئے تھے، لاکھوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے مل کر جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا روڈز بنائے تھے اور سیکورٹی وغیرہ کا انتظام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آگے جو ہے نا یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت کا جو کام ہے نا اس کو پلان کرنا، اچھی طرح چلانا تاکہ عوام کو جو ہے نا بہترین سروسز مل سکیں، ٹھیک ہے؟ پبلک مطلب عوام، اور ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہے کسی نظام کو چلانا۔ تو یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، MCQs کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا پبلک ایڈمنسٹریشن کی جو ڈیفائن ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو وائی پبلک ایڈمنسٹریشن ریسیوڈ امپیٹس ایز اے سبجیکٹ، تو یہ سبجیکٹ جو ہے نا یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس کی جو ہے نا یہاں پہ 5 ریزنز بتائے گئے کہ گورنمنٹ جو ہے نا لوگوں کی مدد کے ذریعے جو ہے مدد کرنا شروع کی تھی، پرائیویٹ جو ہے نا کمپنیز جو ہے نا بڑھ گئی تھی اور ان کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آفس وغیرہ ہوتے ہیں، پرائیویٹ آفس یا گورنمنٹ آفس، اس میں جو ہے نا بہترین کام کرنے کی ضرورت پڑی تھی، تو اس کے لیے بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کی ضرورت پڑی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ہے نا اس کی ترقی کے لیے پبلک ایڈمنسٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آفیسز کو جو ہے نا ٹریننگ دینے کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ڈیفینیشن کے بارے میں آپ بتائیں گے جو کہ بہت اہم ہے شارٹ کوسچن کے لحاظ سے، اور یہاں سے لانگ بھی بن سکتا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا پلانس اور لاز کو جو ہے نا ایک امپلیمنٹ کرنا اور عوام کی بھلائی کے لیے جو ہے نا کام کرنا۔ تو یہاں پہ آگے جو ہے نا مزید بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے بارے میں آگے بتایا گیا، سوری اس سے پہلے جو ہے نا یہاں پہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے بے شمار ڈیفینیشنز ہیں، ان میں سے جو ہے نا یہاں پہ کچھ 6 ڈیفینیشنز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو ان کے اندر بس یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ہے نا پبلک ایڈمنسٹریشن یہ مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے پلانز اور لاز کو جو ہے نا ایک مطلب امپلیمنٹ کرنا، نافذ کرنا اور عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنا۔ تو ان تمام ڈیفینیشنز کا نا یہی مقصد ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے جو ہے نا کام کرنا، بہت سارے لوگ مل جل کر کام کریں تاکہ عوام کو جو ہے نا فائدہ مل سکے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا اپنے شہری کی جو ہے شہریوں کے فائدے کے لیے جو ہے نا قوانین بناتی ہے، اور قوانین جو ہے نا شہریوں کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر انسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ کے بارے میں آگے بات کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے ملک اور اس کے لوگ، اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے ملک اور اس کے لوگ، یہ چیز آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے۔ لیجسلیچر کے بارے میں بتایا گیا پارلیمنٹ، یعنی یہ والی بات بھی آپ نے بڑے اچھے سے یاد کرنی ہے کہ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے۔
पार्लियामेंट वो होती है जहाँ कानून बनते हैं, जैसे नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से काफी अहम है लेजिस्लेशन पार्लियामेंट, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट का जो आपने ये पैराग्राफ ना अच्छे तरीके से पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है। तो अपने इसके पार्लियामेंट का यही मतलब होता है कि जहाँ कानून बनते हैं, जैसे नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। फिर जुडिशरी मतलब कि अब कानून को जो है ना सही मतलब जो है ना ये समझती है और इंसाफ जो है ना अपने अता करती है। जुडिशरी जो होती है ये भी एक प्रॉपर एक तबका होता है गवर्नमेंट का। एग्जीक्यूटिव के बारे में आगे बात की गई है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि वो लोग डिपार्टमेंट जो कानून पर जो है ना अमल करते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, और आपको पता है कि जैसे पुलिस होती है ना, आवाम के निजाम को कोई अगर कानून नाफिज हो जाता है ना तो वो उसको कंट्रोल करती है ताकि आवाम के ऊपर वो नाफिज करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के बारे में आपको बताया कि अच्छा गवर्नमेंट का डिफाइन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि मुल्क को चलाने का सिस्टम जो होता है ना उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है ना काम करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो होता है ना एक प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो है ना पावर का इस्तेमाल किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं और ताकि इंसानों की, ताकि जो है ना अपने माशरे में जो छोटे तबके हैं ना उनकी बेहतरी हो सके। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों की जो हुकूमत होती है, लोगों की हुकूमत इसमें कि आम जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जमहूरियत। इसमें क्या होता है कि आम शहरी को भी बोलने का हक दिया जाता है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी की जो डिफाइन है ना ये भी बड़ी अहम है। तो वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसमें तीन तीन वैल्यूज है, इंडिविजुअलिज्म, इक्वालिटी और लिबर्टी। तो इंडिविजुअलिज्म के अंदर बताया गया है कि इसका मतलब होता है हर इंसान की इज्जत और इंपॉर्टेंस जो है ना सबसे ज्यादा है। इक्वालिटी के अंदर बताया गया कि सब लोग जो है ना कानून की नजर में बराबर है। लिबर्टी के बारे में बताया गया कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले जो है ना खुद करने की आजादी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे बताई गई। तो आगे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया, कॉन्सेप्ट के अंदर ये बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन के किसी काम को करने के लिए जो है ना बनाए गए सेटअप या स्ट्रक्चर। तो ये जितने भी नाम है ना और जिनके काम है आपने अच्छे तरीके से देखना है, शॉर्ट और एमसीक्यू दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताया गया कि किसी काम को बनाने के लिए जो है ना किसी काम को किसी काम करने के लिए ना बनाया गया एक सेटअप या स्ट्रक्चर वगैरह। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या बताया कि सब लोग जो मिलकर किसी मकसद को अचीव करते हैं ना तो उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है कि किसी काम को करने का जो एक स्टेप बाय स्टेप एक जो प्रोसेस होता है ना, एक स्टेप बाय स्टेप जो एक तरीका होता है तो उसको बोलते हैं। तो एफिशिएंसी के अंदर क्या बताया गया है कि काम जो है ना वो चीजों से ज्यादा जो है ना मतलब एक बेहतर जो है ना रिजल्ट देना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 4 चीजों से जो है ना 10 रिजल्ट मिल जाए ना तो ये जो है ना मतलब ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अगर लेकिन 6 चीज़ों से जो है ना वही 10 रिज़ल्ट मिल जाए तो उसको जो है ना एफिशिएंसी कम मिलती है। मतलब कि थोड़े रिसोर्सेज़ यूज़ हो और रिज़ल्ट उसमें ज़्यादा मिले, तो उस चीज़ को एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है कि गवर्नमेंट वो सिस्टम और रूल्स होते हैं जो मुल्क को चलाते हैं। तो गवर्नमेंट की डिफाइन बहुत अहम है, आपने अच्छे तरीके से देखना है। स्टेट की भी डिफाइन आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट और गवर्नमेंट का डिफरेंस, ठीक है। स्टेट के अंदर क्या बताया गया है कि इसका मतलब होता है कि ज़मीन पे जो लोग रहते हैं ना और उसके मतलब जो इदारे होते हैं, ये सारे मिलकर जो काम करते हैं ना उसको स्टेट बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग अपने जो है ना वोट को लोग जो है ना खुद अपनी अपनी मतलब आवाज उठा के ना अपने वोट से जो है ना अपना लीडर खुद चूज करते हैं। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंदर बताया गया है कि अपने इसका मतलब होता है कि अपने वोट से अपने लीडर को जो है ना इसका मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब होता है कि जिनकी जीने का जो हक होता है ना उसको डेमोक्रेटिक वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब होता है जमहूरी इकदार। तो इसमें जो है ना लिबर्टी भी आती है, यानी कि आजादी भी आती है और हर इंसान की अपनी अपनी जो है ना पहचान होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो लेक्चर नंबर 2 है। इसके बाद इसके अंदर ये बताया गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी हुकूमत का जो निज़ाम है ना और लोगों की खिदमत के जो तरीके हैं, इस लेक्चर के ना वो तरीके समझाया गया है। तो डेमोक्रेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि मतलब डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों की हुकूमत, ठीक है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, लोगों की हुकूमत। ये चीज़ बड़ी अहम है, तो आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो होता है ना ये होता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को जो है ना इंसाफ के साथ जो है ना मतलब वो काम करें और सिटीजन जो है ना उनको एक प्रॉपर जो है ना राइट्स दिया जाए, उनके हकूक दिया जाए। तो यहाँ पे जो है ना अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के जो है ना बेसिक कुछ राइट्स हैं, उसके कुछ जो यहाँ पे आइन है ना उसके बारे में यहाँ पे कुछ जिक्र हुआ है। यहाँ पे जो है ना तकरीबन 14 आइन बताए गए हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इनको देख लेते हैं। आपने भी ये जो 14 आइन है ना ये आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। इनके जो मतलब नाम है ना, नाम और इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और एमसीक्यू तीनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इन 14 के 14 नामों को भी याद कर लें। इसके अलावा इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन के अंदर बताया गया है कि हर इंसान की जान है ना, उसकी जान और उसकी जो आजादी है ना वो महफूज है। अरेस्ट के रूल से बताया गया कि अगर किसी को जो है ना अरेस्ट किया जाएगा ना, गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसे बिला वजह नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको वजह बताई जाएगी और उसको जो है ना फिर उसके बाद जो है ना अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। स्लेवरी के बारे में बताइए, किसी को जो है ना जबरदस्ती काम किसी से जो है ना जबरदस्ती कोई काम नहीं निकलवाया जाएगा। ह्यूमन राइट डिग्निटी के बारे में बताया गया कि हर इंसान की इज्जत होती है ना और घर की जो प्राइवेसी होती है उसका एहतराम किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान में जो है ना फ्रीडम ऑफ गवर्नमेंट जो है ना कहीं भी जो है ना हो सकता है।
सॉरी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में ज़िक्र है कि पाकिस्तान में जो है ना हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, ये हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। हम किसी भी जगह पे जहाँ है ना जहाँ जाकर माइग्रेट कर सकते हैं। अगर कोई एक शहर का बंदा जो है ना दूसरे शहर में जाता है ना तो उसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप जो है ना इस शहर में क्यों आए हुए हैं, कि आप जो है ना यहाँ से चले जाएँगे, कि ये हमारा शहर है, ये किसी से नहीं पूछा जाएगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है ना, ये हर किसी की जो है ना एक हक है उसका। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में बताया गया कि अमन के साथ जो है ना मीटिंग या गैदरिंग वगैरह ना कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बताया गया कि यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। सॉरी यहाँ पे जो है ना फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में बताइए कि ये जो ताजिर है ना मतलब वो क्या कारोबार करते हैं, वो अपनी मर्जी से ना जो है ना अपना कारोबार चूज कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के मतलब हर बंदे को जो है ना उसको उसको बोलने का हक है। हर बंदे को अपने अपने हकूक के लिए बोलने का हक है। तो ये चीज बताई गई। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन मतलब इसके अंदर ये बताया गया कि हर शहरी को जो है ना अगर वो अपने जिस भी रिलीजन से ताल्लुक रखता है ना, जिस भी मजहब से ताल्लुक रखता है, तो उसको अपने मजहब के मुताबिक जो है ना इबादत करने का हक है। तो आगे जो है ना टैक्सेस के बारे में बताइए। किसी के ऊपर जो है ना जबरदस्ती जो है ना कोई टैक्स वगैरह लागू नहीं होगा। किसी से जो है ना जबरदस्ती पैसा नहीं निकलवाया जाएगा। तो आगे जो है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर बताया गया है कि अगर कोई बंदा मुसलमानों के स्कूल में पढ़ रहा है ना तो उसको उसको अगर कोई नॉन मुस्लिम जो है ना वहाँ पे पढ़ रहा है तो उसके ऊपर ये ज़बरदस्ती नहीं होगी कि तुम जो है ना मुस्लिम की ही किताबें पढ़ो, ठीक है? उसको उसकी अपनी किताबें पढ़ने का जो है ना पूरा एक हक हासिल होगा, ठीक है? जैसे बताया जाता है कि जैसे हम मुसलमान हैं ना, हम लोग इस्लामियत पढ़ते हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम होते हैं ना, उनके लिए एक एथिक्स की किताब जो है ना रखी जाती है। उनको नहीं इस चीज़ पे पाबंदी दी जाती है कि तुम भी इस्लामियत ही पढ़ो, ठीक है? तो आगे जो है ना इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न के बारे में बताया गया है कि इसका मतलब है कि इंसान जो है ना, इंसान के साथ बराबरी के जो है ना सलूक होना चाहिए। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के अंदर बताया गया है कि तो जो 14वां आईना है ना, उसके अंदर ये बताया गया कि जो पब्लिक प्लेसेस होती है ना, उसमें पब्लिक प्लेसेस हो गए, जैसे पार्क्स हो गई, शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो गए, वहाँ पे ना किसी को भी ये हक नहीं है कि वो फलाँ का रिलीजन ऐसा है, उसका मज़हब ऐसा है या उसकी कास्ट है या जेंडर की वजह से जो है ना उसको रोका जाए, ठीक है? तो हम ये नहीं कह सकते कि फलाँ जो है ना अपने मतलब जैसे मुसलमानों में फ़िरकावारियत है, जैसे एक सुन्नी कहता है कि नहीं वो फलाँ बंदा शिया है तो वो हमारी जो है ना मस्जिद में नहीं आ सकते, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? पब्लिक प्लेसेस में सब जा सकते हैं, ठीक है? तो आगे जो है ना बताया गया है के फैक्टर्स के बारे में बताइए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना अकेले काम नहीं करती। इनमें ना 4 फैक्टर्स होते हैं। मतलब एक इंटरनेशनल फिर इंटरनेशनल होता है कि दुनिया के जो है ना दूसरे मुल्कों का जो है ना एक असर भी होता है। ठीक है? मतलब पूरी दुनिया जो है ना एक-दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है कि तमाम मुल्कों का असर जो है ना एक-दूसरे के ऊपर होता है। फिर आगे जो है ना इकोनॉमिक के बारे में बताया गया है, पैसे और इकोनॉमिक का जो असर होता है ना वो भी इंसान की रहन-सहन पर होता है। फिर सोशल के बारे में बताया गया कि लोगों सोसाइटी का असर भी होता है कि सोशल जैसे जिनकी है ना सोसाइटी का भी असर एक-दूसरे के ऊपर होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताया गया कि हुकूमत और सियासत का जो असर है ना वो भी इंसान की ज़िंदगी के ऊपर होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो फिर इन सारों को जो है ना इन सारों को ही बराबर लेके चलती है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, इन सारों को कंट्रोल करती है। ठीक है? तो इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप लोग मेरी वीडियो को जो है ना बड़े गौर से देख रहे हो तो आप कमेंट्स में ना डन लिखिए, डन, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है कि सोशल लाइफ जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है कि हर कोई एक-दूसरे का कमेंट पढ़ता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बताया गया है कि एवोल्यूशन का मतलब होता है कि धीरे-धीरे तरक्की करना या डेवलपमेंट करना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना बहुत पुरानी एक प्रैक्टिस है, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर जो है ना मतलब ये नई जो है ना वजूद में आई है, लेकिन जबकि है ये बहुत पुरानी। इसका इसका जो ताल्लुक है ना काफ़ी पुराना है। तो इसमें जो है ना 6 स्कूल्स में इसको ना 6 स्कूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। क्लासिकल स्कूल, ह्यूमन रिलेशन बिहेवियर स्कूल, सिस्टम स्कूल, मैनेजमेंट साइंस स्कूल, पावर एंड पॉलिटिक्स। तो इन सबको जो है ना हम एक-एक करके पढ़ते हैं। क्लासिकल स्कूल क्या होता है? इसके सबसे पहले जो है ना क्लासिकल स्कूल को देख लेते हैं कि इस स्कूल के जो है ना अपने जो मशहूर स्कॉलर्स हैं ना वो हैं वुडरॉ विल्सन, लियोनार्ड डी वाइट, इसके अलावा डब्ल्यू.एफ. विल्बाय। तो ये जो है ना इस स्कूल के अपने जो है ना मशहूर स्कॉलर्स हैं। आगे भी कुछ नाम लिखे हुए हैं साइंटिस्ट के, तो आप ये नाम जो है ना ये आप एक दफ़ा पढ़ के जाइएगा, मुमकिन है यहाँ से एमसीक्यूज़ आ जाए, ठीक है? तो आगे ये बताया गया कि इन लोगों ने जो है ना क्या किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है ना बुनियाद रखी थी और बताया गया था कि गवर्नमेंट जो है ना वो बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आगे यही मतलब बताया गया है कि ये जो है ना गवर्नमेंट का अपना जो है ना काम अच्छी प्लानिंग और अच्छी मैनेजमेंट के साथ जो है ना करना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है ना एक अहम मकसद है ताकि लोगों की बेहतरीन जो है ना सर्विस मिल सके लोगों को। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि जब मार्केट्स में कुछ जो है ना एक गलतियाँ जो है ना करती थी, जैसे बाज़ार और कंपनीज़ में जो मतलब फिर क्या हुआ कि मार्केट्स क्या करती थी कि गलत तरीके से अपने माल को जो है ना सेल करती थी। लोगों को उनके हकूक नहीं मिल रहे थे, तो तब क्या हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है ना ज़रूरत पड़ी थी। ये तो इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है ना इम्पोर्टेंस जो स्कॉलर्स थे उनमें सबसे पहले यहाँ पे वुडरॉ विल्सन के बारे में यहाँ पे बताया गया 1887। तो उन्होंने पहले जो है ना ये पहले सबसे फेमस जो है ना अपने उन्होंने एक ऐसे बनाया था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा था। तो ये जो है ना एमसीक्यूज़ के लिहाज से अहमियत के विलियम वॉटसन ने क्या किया था कि एक पहला जो है ना ऐसे लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके अलावा यहाँ पे उनका आइडिया था कि गवर्नमेंट में जो है ना करप्शन और स्नो काम जो है ना खत्म होना चाहिए कि जैसे गवर्नमेंट करप्शन करती है, इसके अलावा काम को जो है ना सुस्त होकर चलती है। कहीं पे अगर मुल्क में कहीं बर्बादी हो जाती है ना तब जाके गवर्नमेंट एक्शन ले रही होती है। ये नहीं है कि पहले ही कोई एक अच्छा निज़ाम बना ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को जो है ना एक प्राइवेट कंपनीज़ की तरह जो है ना एक फास्ट और एफिशिएंट जो काम होता है ना वो करना चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ये अलग-अलग जो है ना चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? और आगे जो है ना लियोनार्ड डी वाइट ने बताया था कि उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है ना
उसको दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एक एफिशिएंसी का, एक डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ होते हैं उनका। एफिशिएंसी मतलब काम को जो है ना एक बेहतरीन तरीके से करना, कि मतलब अगर रिसोर्सेज जो है ना थोड़े लग रहे हैं लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना काफ़ी एफिशिएंट मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को जो है ना ज़हन में रखनी चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सब लोगों के साथ जो है ना बराबरी और इंसाफ से जो है ना पेश आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे WF विलुभाई के बारे में ज़िक्र किया गया है 1927 में, कि ये जो है ना उसमें ये ज़िक्र हुआ कि उन्होंने जो है ना वैल्यू फ्री एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया दिया था। तो उन्होंने किस चीज़ का आइडिया दिया था? वैल्यू फ्री एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज़ भी आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो है ना किसी के साथ जो है ना अपना एक बुरा बिहेव नहीं रख सकते। सबको जो है ना बराबर की सर्विस देनी चाहिए। तो FW टेलर के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि तो ये जो FW टेलर है ना, इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि FW टेलर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एमसीक्यू के लिहाज से जो है ना इसको प्रिपेयर करके जाएगा। तो इसमें क्या बात की गई? टेलर्स ने जो है ना वर्कर को ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। उन्होंने देखा था कि राइस जो है ना अपने क्या जैसे चावल होते हैं या फिर कोल वगैरह होता है ना, कोयला वगैरह, ये चीज़ें उठाना आसान होती है, जबकि अपने लोहा और इस तरह की चीज़ें उठाना ना थोड़ी-सी मुश्किल होती है। फिर उन्होंने क्या किया था कि सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगाया था बल्कि एक्सपेरिमेंट किया इस चीज़ पर। वो कैसे कि उन्होंने ना अपना उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना उसको तो शॉवलिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि टेलर ने जो है ना 2 बेस्ट वर्कर चुने थे, जो उसके लिहाज से जो बेहतरीन वर्कर थे ना उसको चुना था और बोला था कि अगर मेरी बात जो है ना फॉलो करोगे तो डबल सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा था कि एक दिन में जो है ना कितनी बार जो है ना अपने शॉवल होती है ना वो उठाई गई थी। और 2 जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने उठाई थी और हर बार जो है ना ये हर बार देखा गया था कि उन लोगों ने कितना रिजल्ट उठाया। तो रिजल्ट इससे क्या मिला था, कितना जो है ना वेट उठाया था। तो इस चीज़ से रिजल्ट क्या मिला था, टेलर को पता चला था कि हर शॉवल जो है ना हर जो शॉवल होती है ना वो हर काम के लिए सही सही नहीं होती। शॉवल जो होती है ना ये किसी जो है ना टूल का नाम है, जो तमरीज़ वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है। तो ये उसे पता लगा कि सही साइज़ की जो शॉवल होती है ना और सही जो ट्रेनिंग से वर्कर जो है ना उसको उठा रहे हैं, तो वो अपने क्या 21.5 से लेकर 38 पाउंड्स तक जो है ना आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसने ये बताया था कि हाँ, उसने फिर क्या किया, इस रिज़ल्ट के जो है ना इस एक्सपेरिमेंट कुछ रिज़ल्ट दिए। एक ये कहा कि ये जो है ना काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अंदाज़ा लगाकर जो है ना काम करने का एक ये बेहतरीन तरीका है और उसने ये टेलर ने कहा था कि साइंस के मुताबिक जो है ना काम किया करो। और हार्मनी के बारे में बात की थी कि मिल-जुल कर काम करना जो है ना बेहतर होता है। कोऑपरेशन के बारे में बात की थी कि एक-दूसरे के साथ जो है ना एक-दूसरे का साथ देना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। इसके अलावा वर्कर्स को जो है ना ट्रेनिंग दो और सही जो है लोग होते हैं ना उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पे ज़िक्र है कि क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि रूल्स और स्टैंडर्ड्स जो है ना उसको फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाना, वैल्यू फ्री करना, यानी कि बिना किसी की फेवर किए जो है ना बात करना, ठीक है। किसी की फेवर नहीं की, फलां बंदा हमें पसंद है तो हम उसकी फेवर में ज़्यादा बात करें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो थ्योरी के बारे में बात की गई है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो है ना बना हुआ आइडिया या एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बात की गई है। तो लेसन नंबर 3 के अंदर बताया गया है कि इस यहाँ पे ना क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया कि इस लेक्चर में जो है ना स्टूडेंट्स जो है ना साइंटिफिक मैनेजमेंट को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो इसका जो मेन आइडिया है ना ये यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं तो उन्होंने दिए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हेनरी गेंट के बारे में देख लेते हैं। उसने क्या बताया था कि गेंट का जो वो था ना मकसद था, वो काम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और जल्दी करने के ऊपर था। यानी कि मतलब काम जो है ना जल्दी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी दे। तो उन्होंने कहा था कि बहुत से वर्कर्स जो है ना वो मिलकर काम करेंगे और मैच्योरिटी के बारे में उसने बताया था कि दोनों का फ़ायदा एक जो है ना साथ होगा, दोनों का फ़ायदा साथ-साथ होगा। हार्मोनियस कोऑपरेशन के बारे में बताया गया कि प्यार से और मिल-जुल कर काम किया जाएगा। उनका मानना था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो मशीन नहीं होती बल्कि इंसान होते हैं। ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं कि वर्कर या एम्प्लॉइज़ जो है ना यही सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। तो गैंट ने ना एक चार्ट दिया था, उसके अंदर उसने बताया था कि ये जो है ना एक प्लानिंग चार्ट होता है, जो बताता है कि कौन-सा काम जो है ना कब शुरू होगा और कौन-सा काम कब खत्म होगा। तो इसका साफ मतलब ये होता है कि काम का जो टाइम टेबल है ना, ये काम का टाइम टेबल उसने यहाँ पे बताया था इस चार्ट में, ठीक है? जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। तो इस चार्ट में जो है ना मंथ्स, वीक्स और टास्क जो है ना लिखे हुए होते हैं और इसलिए जो है ना प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने का जो है ना एक आसान तरीका यहाँ पे बताया हुआ होता है ताकि काम जो है ना जिस जिस दिन का काम लिखा हुआ है ताकि वो उस दिन में मुकम्मल हो जाए, ठीक है? तो अपना फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट के बारे में बताया गया है कि ये दोनों ना कौन थे, हस्बैंड वाइफ थे और उन्होंने ना टेलर की जो आइडियाज़ थी ना उसको सपोर्ट दिया था और उन्होंने देखा था कि वर्कर्स जो है ना काफ़ी एक्स्ट्रा मूवमेंट करते हैं, जैसे कि ब्रिक लगाने वाले जो वर्कर्स हैं ना वो 18 मूवमेंट्स जो है ना करते हैं। लेकिन एक एक वर्कर जो है ना वो अगर कोई ईंटें लगा रहा है किसी घर के ऊपर ईंटें लगा रहा है तो उसकी वो टोटल 18 मूवमेंट्स को पूरा कर रहा है। उन्होंने ये चीज़ देखी थी, वो 18 टाइप के मूवमेंट्स को पूरा करके जो है ना वहाँ पे ईंट लगा रहा है। ठीक है? तो उसके बाद जो है ना उसने लेकिन जो गिलबर्ट ने ना उसे सिर्फ 5 मोमेंट्स तक ना रिड्यूस कर दिया। तो उसने ऐसा तरीका बताया था कि 18 नहीं बल्कि 5 जो है ना मोमेंट्स के साथ भी हम वो ईंटें लगा सकते हैं। ये क्या था? ये एफिशिएंट रिजल्ट था कि काम उसमें रिसोर्स जो है ना कम यूज़ हो रहे हैं और रिजल्ट जो है ना ज़्यादा मिल रहा है। तो थ्योरी ऑफ ड्यूरेसी के बारे में उसने बताया है कि
मैक्स वेबर जो थे ना एक लॉयर थे, उनका कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन तब सक्सेसफुल होती है जब उसमें जो है ना प्रॉपर सिस्टम हो। तो ब्यूरोक्रेसी की एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बताई गई है कि हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी। तो हर इंसान जो है ना एक एक अपना मतलब एक बॉस होता है। इन पर्सनालिटी के अंदर बताया गया। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पे 6 कैरेक्टरिस्टिक है, तो इन सबको हम एक-एक करके जो है ना स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी साइड पे फिगर दी है, इसमें यही बताया गया कि सबसे पहले जो है ना निचला तबका आता है, जो अपने सोसाइटी की काफी जो अपना मतलब गरीब टाइप के लोग होते हैं ना, सबसे पहले नीचे वही आते हैं। फिर उसके ऊपर कौन होते हैं कि उसके ऊपर जो है ना उससे ऊपर लोग होते हैं। उसके बाद जो है ना उसके ऊपर मजीद उससे पावर वाले लोग होते हैं। फिर सबसे एंड पे कौन होती है? गवर्नमेंट। तो हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी के अंदर जो है ना यहाँ पे सबसे पहले ये बात की गई है कि इसके अंदर ये बताया गया कि हायरार्ची का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना अलग-अलग लेवल्स या रैंक्स का होना। जैसे एक पिरामिड होता है ना, जहाँ सबसे ऊपर जो है ना हाई ऑफिसर और नीचे जो है ना बाकी एम्प्लॉइज होते हैं। हर लेवल के पास जो है ना अपनी जिम्मेदारी होती है, ठीक है? ये बताई गई है। तो जैसे इस फिगर में बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना अलग-अलग लेवल्स हैं, जिसके अंदर एक एक पायरामिड टाइप की उसने शेप दी थी कि जिसमें जो है ना सबसे ऊपर एक हाई ऑफिसर है, फिर उससे नीचे जो है ना फिर बाकी एम्प्लॉइज होते हैं, फिर उससे नीचे बाकी, फिर उससे नीचे बाकी। फिर इस तरह से अथॉरिटी के अंदर बताया गया है कि ये इख्तियार यानी पावर, कि अथॉरिटी का मतलब होता है कि लोगों को जो है ना गाइड करना और उन पर जो है ना असर डालने की जो एबिलिटी होती है ना, उसको अथॉरिटी बोलते हैं। सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? अपने सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने जो है ना अथॉरिटी की जो है ना 3 टाइप्स बताई थी यहाँ पे। तो उसने मैंने सबसे पहले ये बताया था कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, कि रिवायती इख्तियार होता है, कि जो अथॉरिटी जो है ना फैमिली या रिवायत से मिलती है। तो अपने फॉर एग्जांपल एक जो किंग होता है ना, उसका बेटा भी बाद में जो है ना किंग बनता है। तो उसके बाद उसने बताया था कि शख्सियत की वजह से भी अख्तियार मिल जाता है, कि जो किसी इंसान की पर्सनैलिटी, टैलेंट और क्वालिटीज की वजह से अख्तियार मिलता है ना, वो उसकी शख्सियत की वजह से भी अख्तियार होता है, कि वो फलां फेमस एक्टर है या फलां फेमस है ना स्पोर्ट्स स्टार है। तो ये वाली बात उसने बताई थी। फिर रैशनल जो है ना नेशनल लीगल अथॉरिटी के बारे में उसने बताया था कि कानून और ओहदे की जो अथॉरिटी होती है ना, कि जो किसी पोजीशन की वजह से मिलती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि पुलिस ऑफिसर है, उसकी पावर उसका जो है ना उसकी पोस्ट की वजह से मिलती है। कि पुलिस ऑफिसर है ना, उसके पास भी कुछ अथॉरिटीज होती है जो उसकी क्या मिलती है, पोस्ट की वजह से मिल रही होती है। कि वो फलां पुलिस ऑफिसर है ना, उसकी ये पोस्ट है, तो उसके पास अथॉरिटी जो है ना एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा होगी। ब्यूरोसी के तो यहाँ पे उसके बाद ब्यूरोसी के अगले फ्यूचर में जो है ना इम्पर्सनैलिटी के बारे में उसने बताया कि जाति पसंद ना होना, कि काम जो है ना फीलिंग्स या पर्सनल दोस्ती की वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि रूल्स के मुताबिक जो है होना चाहिए। रिटन रूल्स और डॉक्यूमेंट्स की जो है ना उसके ऊपर काम करना, और रिकॉर्ड्स की जो है ना उसको महफूज रखना फ्यूचर के लिए। तो प्रमोशन, तो आजकल तो ये डॉक्यूमेंट्स वाला काम ज्यादा जो है ना वो हो गया है, सेफ हो गया, क्योंकि आजकल हर एक रिकॉर्ड जो है ना कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया जाता है। तो प्रमोशन के बारे में आगे बात की गई है। इसके अंदर क्या बताया है कि जब जिस इंसान की जो स्किल्स है ना और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसको प्रमोशन मिलती है। तो स्पेशलाइजेशन के अंदर बताया गया डिवीजन ऑफ लेबर के काम की जो तकसीम होती है ना, उसके बारे में बताया गया कि हर पर्सन को जो है ना एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है, ताकि वो उसमें जो है ना एक्सपर्ट बन जाए। फॉर एग्जांपल एक जो पिन बनाने वाला बंदा होता है ना, एक जो पिन बना रहा है, तो वो पिन की प्रोडक्शन के अंदर एक्सपर्ट हो जाता है। तो हेनरी फेयल ने बताया कि हेनरी फयोल को ना फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, हेनरी फयोल क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है? हाँ, अच्छा व्यूअर्स, पीछे आपका वो जो शॉवलिंग एक्सपेरिमेंट आया था ना, वो लोगों के लिहाज से अहम है, तो वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है? मैं उस टाइम पे बताना भूल गई थी, शॉवलिंग एक्सपेरिमेंट जो है ना आपका लोगों के लिहाज से बहुत अहम है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अपने हेनरी फयोल जो है ना वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का इनको नाम दिया गया है। इनको जो है ना फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता था। उन्होंने बताया था कि मैनेजमेंट में जो है ना काम को ऑर्गेनाइज करने में ना जो है ना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट जो होती है ना काम को ऑर्गेनाइज करने में बड़ी जरूरी होती है। उन्होंने ना 14 उन्होंने ना कुछ प्रिंसिपल्स में अपने जो है ना कुछ असूल बताए थे। उन्होंने 13 असूल बताए थे कि ये जो है ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे जो है ना हम हाँ, उन असूलों को देख लेते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में उसने बताया था। अच्छा, ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। हेनरी फयाल के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ना आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात की है, काम को जो है ना डिवाइड कर देना। अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात की गई है कि पावर के साथ जो है ना जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। तो डिसिप्लिन के अंदर बात की गई है कि रूल्स के जो है ना रिस्पेक्ट देना, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक एम्प्लॉय जो है ना उसको ऑर्डर जो है ना सिर्फ एक बॉस से लेना चाहिए। तो आगे जो है ना यहाँ पे उसने अपने 5वें असूल के अंदर ये वाली बात की गई है। क्लासिकल 5वें असूल के अंदर उसने क्या बात की गई है कि जो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट है ना, उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन का फायदा भी सोचना चाहिए। कि इंसान को जो है ना सिर्फ अपनी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं सोचनी चाहिए। जैसे आजकल हुकूमत ये काम कर रही है, तो मतलब सिर्फ अपनी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आवाम का भी फायदा सोचना चाहिए। इस तरह से अगर हुकूमत से जो छोटे तबके के लोग हैं वो भी जितने भी लोग हैं ना, कोई जज बन रहा है, कोई जो भी है ना, वो पहले अपनी अपनी जाती इंटरेस्ट सोचता है, वो आवाम की भलाई सोच ही नहीं रहा होता। तो यहाँ पे ये वाली बात है कि अपनी पर्सनल अपनी जो जाती जो फायदा है ना, वो चीज सोचे बगैर आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए, कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचा के ना अपना फायदा नहीं हासिल कर सकते। फिर आगे
के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, उनको उनकी मेहनत का जो है ना एक मतलब अच्छा एक पेमेंट देनी चाहिए। उनको एक उनकी मेहनत का जो है ना अच्छा एक जज़िया देना चाहिए। वो पेमेंट जितनी उनको अच्छी सैलरी देनी चाहिए उनकी मेहनत के मुताबिक। सेंट्रलाइज़ेशन के अंदर बताया गया कि डिसीजन मेकिंग पावर की एक जगह रखना चाहिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो स्केलर चेंज के अंदर बताया गया कि ऑर्गेनाइज़ेशन में ना एक प्रॉपर लाइन होनी चाहिए जो बॉस से एम्प्लॉइज़ तक जो है ना एक प्रॉपर एक सिस्टम बना सके। तो 10 में उसमें बताया गया ऑर्डर के बारे में बताया गया हर चीज़ जो है ना अपनी प्रॉपर जगह पर होनी चाहिए, ठीक है? इक्विटी के अंदर बताया गया कि मैनेजर को जो है ना सबके साथ जो है ना इंसाफ के साथ रहना चाहिए। स्टेबिलिटी के अंदर बताया गया कि एम्प्लॉइज़ को जो है ना जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि ये ना हो कि जब मैनेजर का दिल किया और वो जो है ना अपने एम्प्लॉइज़ को जो है ना उसने अपना जॉब से निकाल दिया। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के अंदर बताया गया कि एम्प्लॉइज़ को जो है ना मतलब ये कि जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इनिशिएटिव के अंदर बताया गया है कि इसका मतलब होता है कि खुद से काम करने का जो जज़्बा होता है ना, ये बात बताई गई है। स्पिरिट के अंदर बताया गया कि जो टीम वर्क होती है ना, यानी बहुत सारे लोग जो है ना मिलकर काम करना। मेन फीचर्स के अंदर कुछ बातें बताई गई। एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना सबसे पहले ये बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उसको पॉलिटिकल नहीं बल्कि टेक्निकल काम जो है ना समझा जाए। ह्यूमन फीलिंग्स से ज़्यादा जो है ना मेथड्स और वर्क पर फोकस किया जाए, ठीक है? अ कि मतलब एक एक ऑफ़िस में अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो है ना मशीनरी सिस्टम तो इस टाइप का सिस्टम रखना चाहिए, बजाए इसके कि इंसानों से सारा काम लेते रहें, ठीक है? तो वर्कर्स को जो है ना मशीन के पार्ट्स की तरह जो है ना अपने अ मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं ना बस उसी की तरह ही जो है ना समझा जाए ये यानी जिस तरह से मशीनें उनके लिए इम्पोर्टेंट है ना वर्कर्स भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए। और इसके अलावा जो है ना इनका जो मेन फोकस होता है ना तो प्रोडक्टिविटी पे होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो है ना आउटपुट लेने की तरफ होना चाहिए, ठीक है? तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंदर बताया गया है कि कि ये अप्रोच जो है ना क्लासिकल स्कूल का जो रिएक्शन होता है ना उसमें आई थी कि इसका इसका स्टार्ट जो है ना 1930 में ये हुआ था। इस अप्रोच ने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में ना जो है ना सिर्फ मशीन और रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते बल्कि एम्प्लॉइज के जो इमोशंस होते हैं उसकी जो नीड्स होती है ना वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस अप्रोच का जो फोकस था ना वो वर्कर्स को इम्पोर्टेंस देना था, यानी कि जो उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उन वर्कर्स को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाए, उनकी फीलिंग्स को समझा जाए और उसके अलावा उनको मोटिवेट किया जाए। ठीक है? फिर आगे जो है ना यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया कि इसमें प्रोडक्टिविटी का मतलब यानी कि प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया गया कि इसका मतलब होता है कि काम जो है ना वर्कर्स या रिसोर्सेज़ के साथ जो है ना ज़्यादा और बेहतर आउटपुट हासिल करना। ठीक है? कि आगे बताया गया डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में कि इसका मतलब होता है कि काम जो है ना कि काम को लोगों में जो है ना डिवाइड कर देना ताकि हर पर्सन जो है ना अपने-अपने काम में जो है ना एक्सपर्ट बन जाए। और आगे बताया गया अथॉरिटी के बारे में कि अथॉरिटी मतलब कि दूसरों को जो है ना इन्फ्लुएंस करने या डिसीजन लेने की जो है ना पावर भी देना। कि हर इंसान को जो है ना एक ऑफिस में अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी हर इंसान को बोलने का हक है। पर्सनैलिटी के अंदर बताया गया कि इसका मतलब होता है कि काम जो है ना करते वक़्त पर्सनल फीलिंग्स को ज़्यादा को साइड पर रखना और रूल्स के मुताबिक जो है ना काम करना। कि अगर हमें कोई इंसान ज़्यादा पसंद है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि फलाँ इंसान से हम कम काम लेंगे। हमें हर हर चीज़ को जो है ना मतलब बराबरी की उस पे रखनी चाहिए। पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पे जो है ना हमें किसी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं देना चाहिए। हायरार्की का मतलब होता है कि आगे हायरार्की के मतलब के बारे में बताया गया। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइज़ेशन में जो है ना डिफरेंट लेवल्स का होना जैसे जैसे कि जो टॉप मैनेजर है ना उनसे लेकर लोअर एम्प्लॉइज़ तक जो है ना काम करना। फिर टाइम और इमोशंस स्टडी के अंदर बताया गया कि वर्कर्स के साथ जो है वर्कर्स के जो है ना काम करने का जो तरीका होता है ना उसको ऑब्जर्व करना और एक्स्ट्रा मोमेंट को रिमूव करना और एक्स्ट्रा मोमेंट को ठीक है मतलब एक्स्ट्रा मोमेंट को रिमूव करके एफिशिएंट बनाना। फिर लेसन नंबर 4 के अंदर बताया गया क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो सेकंड पार्ट है ना उसके बारे में नंबर 4 में बताया गया है। हाँ, तो उससे पहले व्यूअर्स मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप लोग जो है ना मज़ीद अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का जो है ना लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं। अगर आपसे लिंक जॉइन नहीं हो रहा तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, मैं आपको जो है ना उस चैनल के अंदर जो है ना ऐड कर दूँगी, ठीक है? आपके वहाँ पे पेपर से रिलेटेड काफ़ी जो है ना हिंट वगैरह दिए जाते हैं। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर बताया गया है कि ह्यूमन रिलेशन स्कूल क्या होती है कि क्लासिकल स्कूल में जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह जो है ना समझा जाता था और पहले जो है ना क्या होता था कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जो है मतलब लोगों को ना एक मशीन की तरह समझा जाता था और वर्कर्स को जो है ना उनकी इमोशंस का उनकी फीलिंग्स का ना ख्याल रखा जाता था। ठीक है? हाँ, तो इसी के लिए ना उन्होंने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट बनाए। तो उसमें उसके मेन कंट्रीब्यूटर्स थे ना वो क्या थे इस अप्रोच के जो है ना 3 इम्पोर्टेंट जो है ना कंट्रीब्यूटर्स थे जिनमें एल्टोन मायो का नाम है, चेस्टर वन बार्नेट का नाम है और हेर्बर्ट साइमन का नाम है। ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये जो 3 नाम है ये आप अच्छी तरीके से याद रखें, ये आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना आगे अपने हॉथरॉन स्टडीज़ के बारे में बताया गया। इसने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। एटॉन अपने मायो और उनकी जो टीम थी ना, उन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी को जो है ना हॉथरॉन प्लांट में जो है ना 1927 से 1932 तक जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने वर्कर्स को जो है ना 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। एक था कंट्रोल ग्रुप, दूसरा था टेस्ट ग्रुप। तो ये जो क्वेश्चन है ना कंट्रोल ग्रुप और टेस्ट ग्रुप, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अहम है। आप अच्छे तरीके से इसको रट लें। तो कंट्रोल ग्रुप क्या होता है कि जहाँ वर्किंग जो कंडीशंस होती है ना, वो चेंज नहीं की जाती, उसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। जहाँ वर्किंग कंडीशन जो है ना वो चेंज नहीं हो रही, उसको कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। और टेस्ट ग्रुप क्या होता है, जहाँ लाइट रेस्ट ब्रेक्स और वर्किंग कंडीशन जो है ना चेंज की गई थी, उसको टेस्ट ग्रुप बोलते हैं।
ठीक है। कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है, वर्किंग कंडीशंस चेंज नहीं होती, और टेस्ट ग्रुप में क्या होता है, वर्किंग कंडीशंस चेंज होती हैं, लाइट और एवरीथिंग। ठीक है, तो ये चीजें, ये डिफाइन आप अच्छे तरीके से रख लें, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो रिसर्चर्स को लगा, तो यहाँ पे ये दोनों काम किया जाता है। एक ग्रुप के अंदर कंट्रोल, एक दो ग्रुप्स में तब्दील किया था ना, एक साइड पे कंट्रोल ग्रुप रखा था, तो दूसरी साइड में टेस्ट ग्रुप। तो रिसर्चर्स को क्या लगा था कि चेंजेस से जो है ना परफॉर्मेंस में फर्क आएगा, लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि दोनों ग्रुप्स की जो है ना परफॉर्मेंस मजीद इंप्रूव हो गई। वो कैसे कि उसने जो है ना ऑब्जर्व किया कि वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस थी ना, सिर्फ लाइट या इन्वायरमेंट नहीं, बल्कि उस बात से भी इंप्रूव होती है कि मैनेजमेंट और उन पर अटेंशन जो है ना वो दी गई थी, और उन्हें जो है ना इंपॉर्टेंट फील करवाया गया था। ठीक है, मैनेजमेंट को क्या किया गया था, उनको एक बहुत अहमियत दी गई थी, उनको अच्छी सैलरी दी गई थी, एवरीथिंग किया गया था। इसके अलावा बस क्या हुआ था, उनका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया गया था, लाइट वगैरह इन चीज़ों को चेंज कर दिया गया था, लेकिन वर्कर्स की इन चीज़ों से जो वो थी ना आउटपुट थी, वो चेंज नहीं हुई थी, उनका काम में फ़र्क नहीं आया था, क्योंकि वो फिर इस चीज़ से हेड-ऑन इफेक्ट में क्या बात की गई, रिजल्ट निकाला गया कि अगर किसी चीज़ को जो है ना चेंज कर दिया जाए ना, माहौल को चेंज कर दिया जाए, उससे वर्कर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, बल्कि इफेक्ट आता है ना, तो वो मैनेजमेंट के बिहेवियर से आता है। ठीक है, तो इससे जो है ना सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं कि जब एम्प्लॉइज़ को इम्पोर्टेंस और अटेंशन मिलती है ना, तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होकर बेहतरीन वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेस्टर बार्नर्ड ने बताया कि ये जो है ना उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस्टर बार्नर्ड ने कौन सी बुक लिखी थी, लिखी थी द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ये जो आपका हाथोन स्टडीज है ना, एक्सपेरिमेंट है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अहम है, आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप इजिली आप जो है ना पेपर में फिर लिख के आ सकते हैं। तो चार्ल्स बेनेट जो है ना, उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से अहम है। उन्होंने कहा था कि मैनेजर के काम जो है ना सिर्फ ऑर्डर्स देने तक नहीं होता, हाँ, बल्कि जो है ना एम्प्लॉइज के बिहेवियर्स को जो है ना समझते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना कोऑपरेशन से भी होता है। ठीक है, फिर आगे जो है ना उसने यही बताया था कि जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, सिर्फ मशीन और रूल्स के नाम नहीं होती, बल्कि इसमें जो है ना इंसान सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। ठीक है, सोशल इंप्लीकेशंस का मतलब होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सोशल इंप्लीकेशन का लफ्ज़ यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें लोगों के इमोशंस, बिहेवियर और रिलेशनशिप्स को जो है ना अच्छे तरीके से समझता है। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के जो है ना अपोजिट एक बात की थी अ, कि ह्यूमन फैक्टर्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी सिर्फ काम जो है ना ज़्यादा करवाना नहीं, बल्कि एम्प्लॉइज़ की जो नीड होती है ना, उसकी जो ज़रूरियात होती है, उसके साथ कोऑपरेट करना, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे मैनेजर के रोल के बारे में बताया गया कि मैनेजर का किरदार क्या होता है, कि अपने एम्प्लॉइज़ को जो है ना कोऑपरेशन हासिल करना, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हासिल करना। तो यहाँ पे जो है ना 3 ज़ोन्स बताए गए एम्प्लॉइज़ के 3 ज़ोन्स। तो ज़ोन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी जब एम्प्लॉइज़ जो है ना मैनेजर्स को के ऑर्डर जो है ना ईज़िली मान लेता है, तो उसको उसको ज़ोन ऑफ एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ज़ोन ऑफ रिजेक्शन क्या होता है, जब एम्प्लॉइज़ क्या करता है कि जब एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते। आगे ज़ोन ऑफ इंडिफरेंस के बारे में बताया गया, जब एम्प्लॉइज़ जो है ना ज़्यादा खुश होते हैं, ना नाराज़ होते हैं, बस नॉर्मल तरीके से ऑर्डर को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ज़ोन्स बताई गई हैं। तो आगे जो है ना यहाँ पे बर्नर्ड के जो इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ थे ना, उसके बारे में उसने यहाँ पे बताया गया है कि अपने वर्कर्स और मैनेजर्स के दरमियान जो है ना कोऑपरेशन होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो है ना कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉइज़ को के जो डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स के हैं ना, और उनकी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हर्बर्ट साइमन मतलब उन्होंने एक डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी थी 1916 से 2001 तक, उनकी जो लाइफ साइकिल है ना वो ये है। मतलब उन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि हर्बर्ट साइमन जो है ना ये उन्होंने उनसे जो है उन्होंने किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, वो बार्नर्ड से इन्फ्लुएंस हुए थे, और उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उनका जो फोकस था ना ह्यूमन बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग पर था। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है कि किसी सिचुएशन में जो है ना एक सही फैसला करना, एक सही फैसला करने वाला जो ज़हन रखना है ना, उसको डिसीजन मेकिंग माइंड बोलते हैं। ठीक है, सिमोन ने कहा था कि क्लासिकल थ्योरी जो है ना सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाने पर फोकस नहीं करती, बल्कि इंसान की जो नॉलेज होती है ना और उसकी जो थिंकिंग होती है वो लिमिटेड होती है, इसलिए जो है ना हर फैसला परफेक्ट नहीं हो सकता। तो उनके मुताबिक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सही डिसीजन लेना जो है ना जरूरी नहीं होता, बल्कि सब मेंबर्स का उस डिसीजन को जो है ना एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो सिमोन के जो है ना यहाँ पे सिमोन के मुताबिक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे उसने बताया कि लोगों की स्किल्स और हैबिटेट्स होती है ना उसको डेवलप करना, मैनेजर्स को जो है ना अथॉरिटी देना, और इसके अलावा कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के सिस्टम को जो है ना बेहतर बनाना, ताकि अच्छे डिसीजन लिया जा सके। तो यहाँ पे आगे वो बताया गया, कॉन्सेप्ट बताया गया है। इसमें सबसे पहले इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तीनों चारों आप अच्छे तरीके से याद कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या बताया गया कि ये एक्सपेरिमेंट जो है ना हाथोन इलेक्ट्रिक प्लांट में किया गया था, ताकि जो है ना
ये देखा जा सके ग्रुप बिहेवियर्स को का वर्कर्स जो है ना अपने के वर्कर्स की परफॉर्मेंस जो है ना उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। और थोन इफेक्ट के अंदर ये बताया गया है जब बस सुपरवाइजर जो है ना एम्प्लॉइज को अटेंशन देता है ना तो वर्कर्स जो है ना ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो मज़ीद इंप्रूव हो जाती है। प्रोडक्टिविटी के अंदर ये बताया गया कि इसका मतलब होता है कि एक वर्कर्स जो है ना कितना आउटपुट के साथ जो है ना काम कर सकते हैं। ह्यूमन रिलेशन स्कूल के अंदर बताया गया कि ये थ्योरी बताती है कि एम्प्लॉइज को के जो बिहेवियर है ना उनके टीम वर्क और रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो होती है ना और परफॉर्मेंस जो होती है वो कितना असर डालती है किसी चीज़ पर। तो आगे जो है ना लेसन नंबर 5 के अंदर बताया गया ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स के बारे में। तो इसके अंदर ना यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन रिलेशंस को उसको जो है ना अपने हम समझते हैं कि ये थ्योरी जो है ना बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना सिर्फ रूल्स और स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, बल्कि इंसान जो है ना उसकी इंसान की फीलिंग्स, उसके बिहेवियर्स और ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हर्बर्ट साइमन ने ना यहाँ पे कुछ अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर्स के बारे में बताया कि ब्यूरेसी के बारे में उसने सबसे पहले बताया कि ब्यूरेसी क्या होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ब्यूरेसी जो है ना एक स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनाइजेशन का। ये आपने अच्छे तरीके से बस याद रखना ब्यूरेसी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? तो आगे जो है ना एम्प्लॉइज़ मतलब इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम होता है ना और जो रूल्स होते हैं उसको उसके स्ट्रक्चर को ब्यूरेसी बोलते हैं। न तो सिमोन कहता है कि स्ट्रक्चर इंसान के काम करने के तरीके को जो है ना इफेक्ट करता है। ठीक है? एक अच्छा जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, एक अच्छा जो मेथड बनाया जाता है उससे इंसान बेहतर काम ले सकता है। तो ह्यूमन रिलेशन एंड मोटिवेशन के अंदर के बारे में यहाँ पे बताया गया है ह्यूमन रिलेशन एंड मोटिवेशन के अंदर कि एम्प्लॉइज़ की जो मोटिवेशन और जॉब सैटिस्फैक्शन होती है ना वो परफॉर्मेंस को जो है ना मज़ीद बेहतर बनाती है। डिसीजन मेकिंग के अंदर आगे बताया गया कि हर डिसीजन के पीछे जो है ना इंसान की सोच और उसकी जो है ना कुछ रीज़न्स छुपी हुई होती हैं। कुछ मतलब अगर अच्छी सोच होगी ना तो इंसान जो है ना बेहतरीन काम जो है ना कर सकता है। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की जो है ना यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स बताए गए हैं। इस अप्रोच का जो है ना फोकस होता है वो आमतौर पर ये होता है कि एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर पर होता है, उसकी जो थिंकिंग और उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है ना उस चीज़ पर होता है। इनफॉर्मल रिलेशन के ऊपर होता है। कि मतलब एक जो जहाँ पे वो काम करे ना, वो दोस्तों जैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ठीक है? तो आगे जो है ना ग्रुप वर्क और कम्युनिकेशन के ऊपर भी होता है। तो बिहेवियर स्कूल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे बताया गया बिहेवियर स्कूल ने इंसान को जो है ना कि एक्शंस और उनके जो पीछे वाली जो फीलिंग्स होती है ना उसको स्टडी किया था। इसमें जो है ना साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने बताया था कि एम्प्लॉयी के जो बिहेवियर होता है ना ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। बिहेवियर का मीनिंग होता है हर इंसान का जो नज़र आने वाला जो एक्शन होता है ना उसको बिहेवियर बोलते हैं। जैसे एक एम्प्लॉयी जो है ना उसका काम करना ये बात साबित करता है कि वो किस तरह से काम कर रहे थे। लेकिन इस मतलब बिहेवियर जो है ना एक फीलिंग्स को, थॉट्स को, हर चीज़ पर को जो है ना एक असरअंदाज करता है, ठीक है? फिर आगे जो है ना बताया गया है यहाँ पे ना छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि अगर कोई इंसान जो है ना ट्रैफिक सिग्नल जो है ना तोड़ता है, तो हम जो है ना समझ सकते हैं कि उसके रूल्स के लिए जो है ना एटीट्यूड अच्छा नहीं है, ठीक है? तो इसी तरह अगर कोई जगह जो है ना गंदी कर देता है, तो उसकी जो है ना क्लीनलीनेस के बारे में हम सोच सकते हैं कि हम पता लग सकता है कि वो जो है ना इंसान साफ-सुथरा नहीं रहता, अगर वो किसी जगह को गंदा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन स्कूल और बिहेवियर स्कूल में सिमिलरिटीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि दोनों का जो फोकस होता है ना वो मोटिवेशन का होता है कि इंसान को जो है ना काम करने के लिए एक अपने उसके इमोशनल जो फीलिंग्स होती है ना उसको एनकरेज करना। दोनों जो है ना क्लियर कम्युनिकेशन पर जोर देते हैं। इसके अलावा यानी कि बात को जो है ना सिंपल और क्लियर करके समझते हैं। दोनों जो है ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। इसके अलावा दोनों जो है ना इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर को जो है ना स्टडी करते हैं। तो मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ बिहेवियर के अंदर बताया गया है कि यहाँ पे जो है ना 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। डोगलस एमसी ग्रीजर और इब्राहिम मैस्लो। ये जो है ना 2 मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो ये नाम आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है? ये आपका मेन कंट्रीब्यूटर्स के बारे में जो है ना आपका कंप्लीट एक लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। ये आपका टॉपिक काफ़ी अहम है। तो डोगलस एमसी ग्रेजर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी। थ्योरी एक्स में उसने बताया कि ये इंसान के बारे में जो है ना नेगेटिव थिंकिंग होती है, थ्योरी एक्स कि इसका मतलब होता है कि इसके मुताबिक लोग जो है ना काम पसंद नहीं करते और काम से जो है ना बचने की कोशिश करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना नहीं लेना चाहते। इसके अलावा इसलिए जो है ना उन्हें ज़्यादा एक सुपरविजन यानी एक उनको ना ज़्यादा एक सुपरविजन की ज़रूरत होती है थ्योरी एक्स में। और थ्योरी वाई में उसने बताया कि लोग जो है ना ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, वो खुद जो है ना चीज़ों को कंट्रोल करना जानते हैं। इसके अलावा वो जो है ना क्रिएटिविटी यानी कि नए आइडियाज़ पैदा करते हैं, वो अपने काम से मोहब्बत करते हैं। तो आगे उसने ये बताया कि थ्योरी वाई के अंदर ही कि अपने कि हर इंसान जो है ना उसको रेस्ट भी चाहिए होता है, उसको जो है ना वर्क भी चाहिए होता है कि एक इंसान जो है ना पूरा-पूरा दिन रेस्ट भी नहीं कर सकता, वो भी उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह और एक इंसान पूरा-पूरा दिन काम भी नहीं कर सकता, वो भी उसके लिए नुकसानदेह है। तो मैस्लो नीड हायरार्की के बारे में यहाँ पे उसने बताया हायरार्की के बारे में उसने बताया। अच्छा ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो पक्का आएगी ही आएगी, आप इसको अच्छे तरीके से रट लें। एक्स के अंदर जो है ना नेगेटिव बातें की गई है और वाई के अंदर पॉजिटिव बातें की गई हैं। तो मैस्लो नीड हायरार्की के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर बेसिक नीड्स के बारे में, साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में बताया गया है। इंसान की जो है ना सबसे पहले एक जो है ना ज़रूरियात होती हैं, जैसे कि खाना, कपड़े, रहना, जगह। अगर इंसान जो है ना भूखा होता है, वो बड़ी जो है ना चीज़ों के बारे में जो है ना नहीं सोच सकता। सेफ्टी नीड्स के बारे में आगे बताया गया है कि इसका मतलब होता है कि हिफाज़त और सिक्योरिटी जैसे एनवायरनमेंट जो है ना पैदा करना है। इसके अलावा ईगो के बारे में बताया गया है। इसने ईगो के बारे में बताया कि न इसका मतलब होता है कि हर इंसान उसकी इज़्ज़त, उसकी जो रिकॉग्निशन, उसकी पहचान है, उन सारी चीज़ों को की जो है ना हिफाज़त करना। सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन के अंदर उसने बताया कि
ये सबसे जो है ना हाई लेवल का होता है। इसका मतलब होता है कि अपनी एबिलिटीज़ को जो है ना पूरा यूज़ करना ताकि अपने मकसद को हासिल करना। तो सिस्टम स्कूल ऑफ थ्योरी के अंदर उसने बताया कि तो इसका मतलब होता है कि ऐसे पार्ट्स जो मिलकर जो है ना एक कंप्लीट सिस्टम बना देते हैं, कि स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट सिस्टम जो चीज़ बना देते हैं। इस थ्योरी के जो मेन कंट्रीब्यूटर्स है ना उसको उसमें से एक कास्ट फरमोंट है, सॉरी एक है, हाँ, फरमोंट ईकास्ट है, जेम्स रोज़नविच हैं, इसके अलावा विलियम स्कॉट है। तो ये 3 नाम भी आप याद कर लें, ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थ्योरी ये बताती है कि ऑर्गेनाइज़ेशन जो होती है ना, ये एक सिस्टम की तरह होती है, जिसे जो है ना डिफरेंट पार्ट्स मिलकर जो है ना काम करते हैं। सिस्टम की जो है ना 2 टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिस्टिक सिस्टम और दूसरा ऑर्गेनिक सिस्टम। मैकेनिस्टिक सिस्टम और ऑर्गेनिक सिस्टम जो है ना, ये दोनों जो है ना आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैकेनिस्टिक जो सिस्टम होता है ना, ये क्या होता है? तो ये चीज़ देख लेते हैं। ये वो सिस्टम होता है जो बाहर के जो चेंजेस होते हैं ना, उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। जबकि ऑर्गेनिक जो सिस्टम होता है ना, ये वो सिस्टम होता है जो एनवायरनमेंट के जो चेंजेस होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो है ना खुद को एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्गेनाइज़ेशन के जो है ना पार्ट्स और सिस्टम जो है ना वो भी होते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ेशन को समझते हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशन क्या होती है? कि हर ऑर्गेनाइज़ेशन जो होती है ना छोटी-छोटी पार्ट्स या सब सिस्टम पर मुश्तमिल होती है। कि सब सिस्टम जो है ना इसका मतलब होता है कि सब सिस्टम मतलब कि इसका मतलब होता है कि किसी बड़ी चीज़ को जो है ना छोटे-छोटे हिस्सों को जो है ना मिला देना। मतलब कोई बड़ी चीज़ है ना उसके छोटे-छोटे से पार्ट्स कर देना, उसको तो कहते हैं सब सिस्टम। तो जैसे एक यूनिवर्सिटी में जो है ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो मतलब ये उसके क्या हो गए, सब पार्ट्स हो गए। ठीक है? तो आगे जो है ना यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर सबसे पहले सब सिस्टम के बारे में बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन को सब छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सिनर्जी के अंदर बताया गया कि इसका मतलब होता है कि जब जो है ना सब पार्ट्स मिलकर काम करते हैं ना, या तो रिजल्ट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होता है। ये पूरा जो सिस्टम होता है ना, ये अपने पार्ट्स के टोटल से ज़्यादा पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है सिनर्जी के अंदर। सिस्टम बाउंड्री के अंदर बताया गया है कि ये वो लिमिट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना अपने बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखती है। कि मतलब हर सिस्टम की एक बाउंड्रीज़ होनी चाहिए कि वो अपनी हदूद जो है ना वो मुकर्रर करे। ओपन एंड क्लोज़ सिस्टम के अंदर यहाँ पे बताया गया। अच्छा, एक की कॉन्सेप्ट इन सिस्टम्स को के जो की कॉन्सेप्ट है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत अहम है, आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। तो उससे पहले व्यूअर्स आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रही होती हूँ, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही होती हूँ। और मैं जो है ना यूट्यूब पे कोई नई चीज़ लाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कंप्लीट बुक इन वन वीडियो वाली जो है ना सिलेबस लेके आना जो है ना स्टार्ट किए हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ओपन एंड क्लोज़ सिस्टम के बारे में बताया गया कि जो सिस्टम अपने अपने जो है ना एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन या रिसोर्सेज़ को जो है ना एक्सचेंज करते हैं ना, उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम क्या होते हैं? जो एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज़ को एक्सचेंज करते हैं। जबकि क्लोज़ सिस्टम जो होते हैं ना, वो होते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट से जो है ना कॉन्टैक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे जो है ना अपना फीडबैक के बारे में यही बात हो रही है कि कि वापस मिलने वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो ऑर्गेनाइज़ेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प की जाती है, तो उसके फीडबैक बोलते हैं। तो आगे जो है ना अपने डिफरेंट थ्योरीज़ के रोल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया कि डिफरेंट थ्योरीज़ होती है ना, उसका क्या किरदार होता है। किसी एक थ्योरी को जो है ना बेस्ट नहीं कहा जाता, बल्कि जो है ना ऑर्गेनाइज़ेशन के उसको मतलब डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उनको समझा जाता है। तो क्लासिकल थ्योरी के जो है ना ऑर्गेनाइज़ेशन के जो मैकेनिकल साइड्स होती है ना, उसको एक्सप्लेन करती है क्लासिकल थ्योरी। ये तो यहाँ पे जो है ना ह्यूमन जो बिहेवियर है ना, उनके बारे में बात की गई है कि थ्योरी ऑर्गेनाइज़ेशन के जो है ना अपने इंसान जो है ना कुछ पहलू को समझ सकता है ताकि जो सिस्टम है ना वो बेहतर रेगुलेट हो सके। तो कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे थ्योरी एक्स के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर हम नेगेटिव थिंकिंग को पढ़ते हैं इंसानों के। और अपने थ्योरी वाई के बारे में बात की गई है, ये इसमें हम इंसानों की जो पॉजिटिव थिंकिंग्स होती है ना, उसको समझते हैं कि लोग किस तरह से ज़िम्मेदारी से काम कर सकते हैं। बिहेवियर के बारे में बात की है कि किसी इंसान को वो एक्शंस जो हम देख सकते हैं। बिहेवियर्स वो चीज़ होती है। नीड हायरार्ची के अंदर बात की गई है कि अपने इंसान की जो नीड्स होती है ना, वो डिफरेंट लेवल्स पे क्या होती है, जो बेसिक नीड होती है नीड हायरार्की के अंदर ये बात की गई है। तो सब सिस्टम के अंदर बात की गई है कि ऑर्गेनाइजेशन का वो छोटा हिस्सा जो मिलकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो फीडबैक के अंदर ये बात की गई है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो वापस मिलने वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको बेहतर बनाती है। तो ये जो है ना ये सारी पूरे लेक्चर का एक समझ लो जो कांसेप्ट होता है ना, ये पूरे लेक्चर का एक निचोड़ होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें भी आप अच्छे तरीके से देखा करें, यहाँ से आपका शॉर्ट आ सकता है। तो यहाँ से आप जस्ट नाम ले लिया करें, जैसे थ्योरी एक्स है, थ्योरी वाई है, तो मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जस्ट आप नाम जो है ना पिक कर लिया करें और आप तैयार जो है ना लेक्चर के अंदर से क्या करें, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का यहाँ पे कितना ज़्यादा बताया गया और वहाँ पे जो है ना बस छोटी सी एक लाइन बताई गई है। ठीक है? तो आप जो है ना ये चीज़ अच्छे से तैयार करें ताकि आपको जो है ना अपना पेपर अच्छा हो सके। तो लेसन नंबर 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया कि पावर और पॉलिटिक्स के जो कांसेप्ट है ना उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि पावर का जो कांसेप्ट है ना सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि एक पावर का मतलब होता है कि हर इंसान जो है ना या डिपार्टमेंट की जो एबिलिटी होती है ना कि वो दूसरों को जो है ना डिसीजन या एक्शन को जो है ना इफेक्ट किस तरह से करता है। इंसान की जो पावर होती है कि आसान अल्फाज में हम समझ लें कि जिसके पास जो है ना पावर होती है ना वो लोगों को अपनी जो है ना बात मनवाने का काम करवाने की जो है ना सलाहियत रखता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बताया गया है कि इसमें पावर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मैनेजर जो है ना इसी के जरिए जो है ना एम्प्लॉइज को गाइड करता है और अपने जो गोल्स होते हैं ना, अपने जो मकसद होते हैं, उनको अचीव करता है। तो पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर ये बताया गया है कि पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर ये बताया गया है कि रिसोर्सेज़ का जो कंट्रोल होता है ना और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको जो है ना कंट्रोल करना। ठीक है?
रिसोर्सेज में क्या चीज़ आती है, पैसा आता है, इन्फॉर्मेशन आती है, स्टाफ आती है, फैसिलिटीज़ आती हैं, रिसोर्सेज में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो हेरोल लेसवेल के तो जो हेरोल्ड लेसवेल थे ना, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी, जिसका मतलब होता है उसने बताया था हू गेट्स व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। यानी इसका मतलब होता है कि किसको क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा, ठीक है? अक्सर पॉलिटिक्स अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो उसने लाइन बताई थी ना, हू गेट्स व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो ये लाइन आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में आ सकती है। तो अक्सर पॉलिटिक्स जो है ना उसको जो है ना नेगेटिव समझा जाता था। क्योंकि लोग इससे जो है ना मैनिपुलेशन यानी चालाक तरीके से जो है ना अपना फ़ायदा हासिल करने वाला समझते थे पॉलिटिक्स को। ठीक है? पावर एंड अथॉरिटी का जो डिफरेंस होता है ना, जहाँ पे पावर एंड अथॉरिटी के बारे में बताया गया है कि अथॉरिटी का मतलब होता है कि जॉब की वज़ह से मिलने वाला जो हक होता है ना, उसको अथॉरिटी बोलते हैं। जैसे मैनेजर को अपनी जो पोज़ीशन की वज़ह से जो है ना अथॉरिटी मिल जाती है, लेकिन पावर अथॉरिटी से जो है ना ज़्यादा बड़ी होती है। अच्छा, आपने ये देखा होगा, ये जो एक्टर्स होते हैं, जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो जाते हैं लोग, तो उनके पास भी ज़्यादा पावर होती है, उनके पास भी ज़्यादा अथॉरिटी होती है, ठीक है? वो भी आम लोगों से एक नॉर्मल इंसान से जो है ना ज़्यादा एक अथॉरिटी रखते हैं। तो ये चीज़ भी आती है अथॉरिटी के अंदर। तो लेकिन पावर जो होती है ना, वो अथॉरिटी से ज़्यादा वाइड कांसेप्ट रखती है। क्योंकि पावर जो है ना सिर्फ़ पोज़ीशन से नहीं मिलती, बल्कि नॉलेज, रिस्पेक्ट और पर्सनैलिटी से भी आती है, ठीक है? पावर क्या चीज़ होती है कि लोगों को जो है ना उसके नॉलेज, उसके उसके जो रिस्पेक्ट होती है ना, उसकी जो सोसाइटी के अंदर जो उसका नाम होता है, वो उस चीज़ से भी पावर उसको मिल जाती है। तो ये चीज़ भी है। जैसे एक एक्टर होता है ना, एक एक्टर की पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि सोसाइटी में उसका नाम है, सोशल मीडिया पे उसका नाम है। हज़ारों लोग उसको जानते होते हैं, लाखों बल्कि बाज़ औक़ात करोड़ों लोग भी। तो ऑर्गनाइज़ेशन में पावर की इम्पोर्टेंस के बारे में आगे बताया गया है यहाँ पे कि पावर जो है ना ऑर्गनाइज़ेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके बगैर जो है ना मैनेजर लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और मकसद जो है ना अचीव करना जो है ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ पावर्स के अंदर बताया गया लेजिटिमेट पावर, रिवार्ड और ये वो। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को एक-एक करके जो है ना देखते हैं। लेजिटिमेट पावर के बारे में देखते हैं कि ये वो पावर होती है जो किसी की जो ऑफिशियल पोजीशन होती है ना, उससे मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर के एम्प्लॉइज को के जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, ये देना कि मतलब मैनेजर को जो पावर मिलती है ना, वो लेजिटिमेट पावर है उसकी। तो रिवार्ड के बारे में बताया गया, रिवार्ड पनिश पावर। इसका मतलब होता है कि ये एम्प्लॉइज को जो है ना ये एम्प्लॉइज को पनिशमेंट देने की जो पावर होती है ना, रिवार्ड पनिशमेंट पावर के जैसे एक बुजुर्ग है, वो बच्चों को जो है ना मतलब मार पीट सकता है, वो जो है ना थोड़ी सी उसके ऊपर रोब रख सकता है, क्योंकि वो बड़ा है हमसे, तो ये उसकी एक रिवार्ड है, ये उसकी जो है ना पनिश पावर है। तो एक्सपर्ट पावर के बारे में आगे बताया गया कि ये नॉलेज और स्किल्स की वजह से हासिल होती है। ये इंसान के पास जो है ना ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। जिस इंसान के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है ना, लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रेफरेंट पावर के अंदर बताया गया है कि ये रिस्पेक्ट और पर्सनैलिटी की वजह से जो है ना मिलती है। लोग जो है ना किसी इंसान को पसंद या एडमायर करते हैं ना, तो इसकी वजह से जो है ना उसकी बात भी फॉलो की जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बताया गया है कि लोगों के दरमियान जो डिसएग्रीमेंट होते हैं, जो डिफरेंसेस वगैरह होती हैं, उसके उसके जो ओपिनियंस होते हैं, लोगों के दरमियान के आपस के तज़ाद, उनके फ़र्क वगैरह, तो या वो उस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं कि जो लोग, जब लोग जो है ना उनकी सोच या आइडियाज़ जो है ना एक-दूसरे से डिफरेंट होते हैं ना, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। तो आगे जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज़िक्र किया गया, तो ये हम देख लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा जो है ना बुरा नहीं होता। पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि जिसमें जो है ना हम आइडियाज़ जो है ना एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और ऑर्गनाइज़ेशन ना इम्प्रूव होती है कि हर इंसान के पास अपना-अपना दिमाग है, तो हर इंसान के जो है ना मुख्तलिफ वो होते हैं, नज़रियात होते हैं। तो ये होती है क्या पॉजिटिव एक कॉन्फ्लिक्ट, कि हर इंसान अपना नज़रिया दे रहा है। तो नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है? उसमें जो है ना मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं। तो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसका डिफरेंस भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। द रिएक्शन ऑफ मैनेजर्स के अंदर बताया गया है कि कुछ मैनेजर्स जो होते हैं ना, पॉलिटिक्स को नेगेटिव तरीके से समझते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हमेशा होती ही रहती है। तो अगर इसे पॉजिटिव वे में समझा जाए ना, तो इसमें जो है ना मतलब काफ़ी एक ये अच्छा बेहतर जो है ना काम हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ना आगे बताया गया है कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है ना, उसका मतलब होता है कि पावर यूज़ करके जो है ना अपनी बात मनवाना, या अपने जो है ना गोल्स को, अपने मकसद को अचीव करना। ये ज़्यादातर जो है ना उन डिसीजंस में होता है कि जहाँ चेंजेस जो है ना इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ऑर्गनाइजेशन के स्ट्रक्चर चेंज करना वगैरह। तो थ्री डायमेंशंस टाइपोलॉजी के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर ये जो है ना फेरल और पैटरसन ने जो है ना पॉलिटिकल बिहेवियर को जो है ना समझने के लिए 3 पॉइंट्स दिए थे। तो ये थ्री डायमेंशन टाइपोलॉजी जो है ना, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिए। इसमें सबसे पहले उसने प्लेस यानी जगह के बारे में बताया था कि पॉलिटिक्स जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या बाहर, उसने ये चीज़ बताई थी। डायरेक्शन के बारे में बताया था, इन्फ्लुएंस यानी कि इन्फ्लुएंस जो है ना ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, या सेम लेवल पर है, ठीक है। लेगिटिमेसी के अंदर उसने बताया था कि एक्शन जो है ना सही और एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये हुकूमत का यानी कि इसी पर्पस को समझने के लिए ना उसने पॉलिटिक्स जो है ना कहाँ और किस तरह काम करती है ना, ये चीज़ उसने समझाई थी। तो कॉन्सेप्ट के अंदर ये बात बताई गई है, पावर पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। पावर यानी कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी, और पॉलिटिक्स यानी कि पावर यूज़ करने का तरीका, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ को जो है ना बिहेवियर और इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो लेसन नंबर 7 है यहाँ पे, इसके अंदर है ना हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिस्ट्री है ना, जहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैनेजमेंट साइंस स्कूल के बारे में बताया गया है कि
کہ جب वर्ल्ड वॉर जो 2 थी ना, उसके टाइम पे ब्रिटेन को जो है ना बहुत एक मुश्किल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है ना चाहिए था। इसलिए मतलब जंग होती है, आपको पता है जंग में कितनी कोई मुसीबतें आती हैं। तो इसलिए जो है ना उन्होंने साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस की जो है ना एक टीम बनाई थी ताकि लोगों का फ़ायदा हो। तो उन्होंने ना एक ऑपरेशन रिसर्च यूज़ की थी कि मतलब कि ऑपरेशन रिसर्च का मतलब होता है कि मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की मदद से जो है ना एक बेस्ट सॉल्यूशन ढूँढना। कि जंग में आपको पता है कितनी तबाही हो जाती है। तो मतलब एक बेस्ट उन्होंने सॉल्यूशन ढूँढना था ताकि इन तबाहियों का जो है ना एक आसान जो है ना तरीका इजाद किया जा सके। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर उसने बताया कि नंबर के जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना और एनालिसिस होता है उनको समझना, वेरिएबल्स के बारे में उसने बात की थी कि वो चीज़ें जो चेंज होती है ना, जैसे एज और लर्निंग वगैरह, तो उसके बारे में उसने बात की थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द सब कॉन्टिनेंट के अंदर उसने बताया कि पाकिस्तान का जो है ना आज पाकिस्तान का आज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना वो ज़्यादातर ब्रिटिश पीरियड से आया है। ब्रिटिश ने ना कुछ रूल्स बदले, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सिस्टम जो है ना मुगल पीरियड्स वाला ही रखा था। तो पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना सिर्फ ब्रिटिश का नहीं है, बल्कि इंडस वैली अपने ग्रीक्स और पर्शियन वगैरह का भी है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है कि हर गवर्नमेंट के जो है ना 4 बेसिक काम होते हैं। लॉ और ऑर्डर, यानी कि अच्छा ये ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के जो 4 बेसिक फंक्शन है, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देख लेना, ये बड़े अहम है। तो लॉ एंड ऑर्डर के अमन और सिक्योरिटी जो है ना वो कायम करना। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन के बारे में बात की गई है कि लोगों से जो है ना टैक्स लेना। तो आगे जो है ना डिफेंस के बारे में बात की है कि मुल्क को जो दुश्मन से बचाना है। इसके अलावा मिंट के बारे में बात की गई है कि करेंसी और कॉइन्स जो है ना बनाना, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो है ना बताया गया है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है ना उस ज़माने के जो है ना बहुत एडवांस शहर थे, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, ठीक है। वहाँ पे मतलब सिविल सिस्टम बहुत अच्छा था, पानी साफ होता था और ग्रीनरी वगैरह थी, तो बड़े खूबसूरत शहर थे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर उसने बताया कि इसमें जो है ना सीधी और प्लानिंग वाल जो है ना रोड्स और ड्रेनेज का सिस्टम था। इससे पता चलता था कि किस वक़्त जो है ना मतलब इससे जो है ना पता चलता है कि उस वक़्त की जो स्ट्रॉन्ग की जो गवर्नमेंट थी ना वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग थी। तो ये मतलब काफ़ी खूबसूरत शहर थे। तो आगे जो है ना यहाँ पे बताया गया है कि मौर्य एम्पायर के अंदर यहाँ पे बताया गया कि इसमें क्या था कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, यानी कि ज़मीन और रोड्स वगैरह जो है ना देखने को मिलते थे। मिलिट्री ऑफिसर्स थे, यानी कि आर्मी और बॉर्डर्स की सिक्योरिटी जो है ना वो भी यहाँ पे मौजूद थे। कैपिटल ऑफिसर्स थे, यानी कि फैक्ट्रीज, फॉरेनर्स और बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे शामिल थे। इसके अलावा यहाँ पे कौटिल्य की जो है ना अर्थशास्त्र की जो दुनिया होती है ना उसके बारे में यहाँ पे बताया कि वो जो है ना सबसे पुरानी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है ना बुक्स में से एक है। इसमें जो है ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो ड्यूटीज बताई गई है ना, इसके अंदर क्या बताया गया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ड्यूटीज बताई गई हैं। तो ये जो नाम है ना कौटिल्य की टेस्ट रहा, ये नाम आपने याद रखना है, ठीक है। काफ़ी मुश्किल सा नाम है, तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो मुगल पीरियड के बारे में यहाँ पे बताया गया कि शेरशाह सूरी ने ना 47 डिवीजन बनाए थे। तो ये भी आपका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने कितने डिवीजन बनाए थे? 47 डिवीजन बनाए थे। एक लैंड सर्वे टैक्स सिस्टम, जस्टिस सिस्टम और काफ़ी मशहूर जो है ना रोड बनाए थे। इसके अलावा हॉस्पिटल बनाए थे और काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है ना उसने आगे अकबर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है कि अकबर ने जो है ना इस सिस्टम को और जो है ना मज़ीद बेहतर बनाया था। ठीक है, एम्पायर को जो है ना प्रोविंस और विलेजेस वगैरह बनाए थे। हर विलेज में जो है ना एक हेडमैन था जो कि मतलब उस जो गाँव थी ना उसकी हिफाज़त करता था। सिविल सर्विस थी यहाँ पे। और इसके अलावा अकबर के जो है ना 3 इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पे बातें बताई गई हैं कि रिवेन्यू सिस्टम के मट्टी मट्टी देख कर जो है ना टैक्स फिक्स होता था, ठीक है। कि ज़मीन को जो है ना वो मतलब ज़रख़ेज़ और जो गैर ज़रख़ेज़ ज़मीन थी ना उसके हिसाब से जो है ना फ़िक्स किया गया था, ठीक है। फिर आगे जो है ना जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताया गया कि हर लेवल पर जो है ना जजेस को जो है ना अपॉइंट किया गया था। लॉ एनफोर्समेंट के अंदर बताया गया कि शहरों में जो है ना कोर्ट वाला और विलेजेस में जो है ना 4 स्टार क्राइम जो है ना कंट्रोल करने का जो सिस्टम था ना वो भी मौजूद था। तो आगे जो है ना यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना 1600 में बनी थी। आज की जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना उसी की तरह ही थी उस दौर में भी। ताकि इसमें जो है ना बड़ी बिज़नेस कंपनी मौजूद थी जो इंडिया की जो मसले थे ना उसको अपना कंट्रोल करती थी। इसके अलावा खरीदने और फ़रोख्त करने वाले जो काम होते हैं ना उसने वो किए थे, ठीक है। फिर ब्रिटिश पीरियड के बारे में आगे बात की गई है कि 1609 में जो है ना कंपनी को बिज़नेस बढ़ने की जो है ना इजाज़त मिली थी। 1661 में जो है ना उसे जंग करने की और अमन के जो फैसले होते हैं है ना वो करने की जो है ना हक मिल गया था। तो रेगुलेशन के बारे में बताया गया कि ये 1773 में एक रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था। तो इसमें जो है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ना 1773 में एक लॉ बनाया था जो कि क्या काम करता था कि रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के नाम काम पर जो है ना निगरानी जो है ना वो शुरू की थी। तो बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में 1857 में बात की गई थी।
कि इसमें जो है ना 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ना इंडिया पर एक सीधा जो है ना रूल शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट के पुराने जो है ना कुछ फंक्शंस के बारे में बात की गई है कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है, ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट के कुछ पुराने फंक्शन जैसे लॉ ऑर्डर वगैरह, इसके अलावा टैक्स कलेक्शन के लोगों से टैक्स लेना, इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम के अपने मुल्क की जो है ना हिफाजत करना, इसके अलावा अपने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या बताया गया था कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी के तहत जो के निज़ाम को जो है ना कंट्रोल करती थी। तो इस वाले लेसन में जो है ना ये सारा टॉपिक आप एक दफ़ा पढ़ लें। यहाँ पे जो वो बातें की गई हैं, यहाँ पे डेट्स वगैरह जो बताई गई हैं, ये चीज़ आप पढ़ लें, एमसीक्यूज़ की लिहाज़ से इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। तो लेसन नंबर 8 के अंदर बताया गया है कि यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 के बारे में बताया गया कि इसके अंदर क्या बताया गया कि 1857 की जो जंग थी ना, उसको तो आप सब जानते होंगे। 1857 की जो जंग आज़ादी थी, तो उसमें जो है ना एक बहुत बड़ी एक तब्दीली आई थी कि तो ब्रिटिश ने ना लोगों में एक तफरीका यानी कि मतलब एक जैसे फ़िरकावारियत होती है ना, वो पैदा कर दी थी और एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना गफ़लत एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या की थी, गफ़लत की थी बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वज़ह से जो है ना काफ़ी नुकसान हुआ था। जब बगावत जो है ना फैल गई थी और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने फैसला किए थे तब जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में उसने कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो निज़ाम को नहीं चलाएगी बल्कि वो खुद जो है ना मतलब इंडिया को चलाएँगे। तो ये जो है ना एक बड़ी बगावत की थी लोगों ने, अंग्रेज़ों ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर बताया गया कि 1858 में जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। इसके बाद जो है ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी एक बड़ा जो है ना हुकूमती एक अफ़सर जो है ना इंडिया की टीम की जो तमाम काम होते हैं ना वो देखने लगा था। उसके काम में था बगावत को जो है ना रोकना और ज़रूरत पर जो है ना एक ताकत इस्तेमाल करना। तो काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स के अंदर बताया गया कि इस एक्ट के बाद जो है ना 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि जो यूके में बैठकर जो है ना इंडिया की हुकूमत जो है ना संभाली जाती थी, ठीक है? ये 15 मेंबर्स की काउंसिल थी, यूके में बैठ के जो है ना इंडिया की जो हुकूमत थी ना वो संभालती थी। तो पावर जो है ना, पावर के बारे में बात की गई थी कि इस वक़्त जो है ना असल अख्तियार जो है ना वो इंडिया का जो असल अख्तियार था ना वो लंदन के पास था। वो जो है ना यूरोप वाली साइड पे था। तो गवर्नर जनरल भी ब्रिटिश ने एक मतलब ब्रिटिश कानून जो है ना अपॉइंट करता था लोगों पर और वो जो है ना स्टेट को जो है ना कंट्रोल करता था। लेकिन मतलब काफ़ी बगावत उस दौर में फैली हुई थी कि यहाँ पे जो है ना अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो सिविल सर्विस के बारे में बताया गया कि शुरू में जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज़ जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम थे। एक अपने कोवेनेंटेड और यानी कि एक का नाम था कोवेनेंटेड यानी कि सीनियर जो ऑफिसर्स थे ना, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे और एक था अनकॉवेनेंटेड जो जूनियर एम्प्लॉइज़ थे ना, जिन्हें किसी भी वक़्त जो है ना जॉब से निकाला जा सकता था। तो ये वाली बात यहाँ पे की गई है। तो अपने यहाँ पे ना अपने एचिस्टोनो कमीशन के बारे में बात की गई है कि इस कमीशन ने ना कहा था कि दोनों जो है ना कैटेगरीज़ अपने ख़त्म करो और इंपीरियल सर्विस जो है ना वो बनाओ। ठीक है? कि दोनों कैटेगरीज़ कौन-सी के कैटेगरीज़ जो मतलब कि सीनियर सर्विस जो है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था और जूनियर एम्प्लॉइज़ को जो है ना किसी वक़्त निकाल दिया जाता था। तो ये वाली जो बात थी ना, तो अपने इस कमीशन के अंदर ये बताया गया था कि ये चीज़ ख़त्म करो। तो आगे उसने बताया था आईसीएस की ट्रेनिंग के बारे में बताया गया कि 1806 में जो है ना इंग्लैंड के अपने हेलेब्यूरी कॉलेज में जो है ना आईसीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। 1853 के बाद जो है ना इंडिया के जो यंग लोग थे ना वो मेरिट पर जो है ना एडमिशन ले सकते थे। चाहे उनका जो मज़हब या रेस जो है ना वो किसी भी कहीं से भी क्यों ना हो। तो सैलरी के बारे में बात की गई सिविल सर्विस को जो है ना अच्छी सैलरी दी जाती थी ताकि वो जो है ना रिश्वत या गलत तरीके से जो है ना पैसा कमाने की ज़रूरत महसूस ना करें। ठीक है? तो आगे जो है ना यहाँ पे ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना उसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया गया कि ब्रिटिश ने ना इंडिया में बहुत चेंजेस लेके आए थे। सिविल सर्विस एक्ट पास करवाया था जिसमें प्रमोशन की गई थी कि सिर्फ जो है ना पुराने एम्प्लॉइज़ पर नहीं बल्कि टैलेंट पर भी लोग जो है ना मतलब आगे मूव हो सकेंगे। तो आगे जो है ना यहाँ पे ये बात की गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो है ना अलग एक रिक्रूटमेंट ऑफिस बनाया गया था। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि नए लोगों को भी जॉब देना स्टार्ट किया गया था। पहले क्या होता था कि सिर्फ पुराने लोग थे ना सिर्फ उन्हीं की प्रमोशन होती रहती थी, सिर्फ वही पैसा कमाते रहते थे। बाकी जो जो नए आने वाले लोग थे ना उनको अहमियत नहीं दी जाती थी, तो ये चीज़ खत्म कर दी गई थी। ठीक है? फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना एक एक्ट पास किया था 1935 में कि किसी ऑफिसर को जो है ना बिना अपनी बात सुनाए जो है ना जॉब से नहीं निकाला जाएगा। कि मतलब जॉब का जो है ना उसके जॉब की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। तो आगे जो है ना यहाँ पे पुलिस एंड लॉ सिस्टम यहाँ पे बनाया गया था कि जिसके अंदर बताया कि पुलिस एक्ट पास की गई थी 1861 में। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना एक सुपरिटेंडेंट होगा और जो है ना उसके नीचे काफ़ी सारे ऑफिसर्स काम करेंगे और वो जो है ना उस निज़ाम को कंट्रोल करेगा। तो फाइनेंस सिस्टम बनाया गया था कि ब्रिटिश ने जो है ना लैंड मतलब जो ज़मीन होती है ना उस पर टैक्स आयड किए थे, इनकम टैक्स था और बजट सिस्टम को जो है ना थोड़ा-सा इम्प्रूव किया था। फिर उसके बाद व्यूअर्स क्या हुआ था एजुकेशन जो डेवलपमेंट्स होती है ना उसका आगाज़ हुआ था कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में के जो है ना एक एक्ट पास हुआ था 1904 में उसमें एजुकेशन को ना बेहतर बनाया गया था।
एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाया गया था, वो ऐसे कि अच्छे टीचर्स जो है ना, अच्छे-अच्छे जो टीचर्स होते हैं उनको जो है ना भर्ती किया गया था, और एग्ज़ाम का जो सिस्टम है ना वो भी इम्प्रूव किया गया था। इसके अलावा रेलवेज़ और पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ वगैरह को भी ये जो है ना एक उसके अंदर भी बेहतरी लेके आई गई थी, ठीक है। टेलीग्राफ में ना एक मतलब पुराना एक मैसेज भेजने का ना एक सिस्टम होता था, जिसको बेहतर बनाया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान को जो है ना इंडिपेंडेंस के बाद जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना जो है ना करना पड़ा था। उनमें से ना कुछ यहाँ पे ये है कि अपने एक तो ट्रेन्ड ऑफिसर जो है ना और डॉक्टर्स की कमी थी जब पाकिस्तान बना था उसके बाद, कि ऑफिसर्स और डॉक्टर्स जो है ना जो काफ़ी ट्रेन्ड होते हैं, तो उनकी कमी थी। दूसरा लाखों जो है ना कैंप्स बनाए गए थे। ठीक है। लाखों लाखों की तादाद में जब वहाँ से लोग यहाँ पे आए थे ना, तो उनके पास रहने के लिए कोई जो है ना ठिकाना नहीं था। तो उनके लिए ठिकाने वगैरह जो है ना यहाँ पे बनाए गए थे, तो जिसकी वज़ह से पाकिस्तान को जो है ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी मसाइल का ना सामना करना पड़ा था, ठीक है। रोड्स और इंडस्ट्रीज़ जो है ना बहुत कम थी यहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है। सबसे बड़ा जो काम था ना वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कोई आइन बनाना था, जो मुल्क के बुनियादी कानून को जो है ना एक बेसिक रूल दे सके। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे लेसन नंबर 9 आपका स्टार्ट हो गया, जिसमें बताया गया है सिविल सर्विस के बारे में। सिविल सर्विस क्या होती है? तो सिविल सर्विस वो होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना पब्लिक की सर्विस करती है, और सैलरी जो है ना गवर्नमेंट से लेती है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, व्हाट इज सिविल सर्विस। तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि सिविल का मतलब होता है अवाम या पब्लिक, सर्विस का मतलब होता है खिदमत। यानी सिविल सर्विस से वो सर्विस होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को रिसीव होती है, और पब्लिक जो है ना फिर गवर्नमेंट से उसकी अमाउंट लेती है, पैसे लेती है, सैलरी लेती है। फिर गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस के अंदर बताया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पर जो है ना जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ग्रेड 15 और उससे ऊपर की जो जॉब्स है ना उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना ये एक टेस्ट होता है, और इंटरव्यू जो है ना यहाँ पे लिए जाते हैं। फिर आगे जो है ना फेडरल गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया कि इसमें क्या होता है, मिनिस्ट्री होती है, डिवीजन होती है, अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेज होती हैं, ठीक है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया कि यहाँ डिपार्टमेंट्स होते हैं, डायरेक्टरेट होते हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट और तहसील ऑफिसेज होते हैं। तो ये दोनों का इन दोनों का डिफरेंस जो है ना बहुत अहम है, आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर आगे जो है ना यहाँ पे बताया गया है फंक्शंस परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो मेन फंक्शन है ना वो कौन से हैं, कि उनके जो मेन फंक्शन होते हैं ना ये भी आपके बहुत अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे तरीके से इसको सुनिए कि इसमें जो है ना बताया गया कि अमन और कायम रखना, मुल्क की हिफाजत करना, टैक्स और रेवेन्यू लेना, करेंसी को कंट्रोल करना। वो तो मॉडर्न गवर्नमेंट जो है ना इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करती है, जैसे कि पब्लिक को जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, टेलीफोन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गैस प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं ना उनको संभालती है, दूसरे मुल्कों से जो है ना रिलेशंस रखती है, ठीक है। तो आगे जो है ना गवर्नमेंट के जो है ना अपने फंक्शंस के बारे में मजीद बताया गया कि पॉपुलेशन की जो जैसे होती है ना पॉपुलेशन लोगों की जो तादाद हो गया वो जब उसके बढ़ने की वजह से जो मुल्क के अंदर चेंजेस आते हैं ना, तो उसको कंट्रोल करना भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो जिसकी वजह से जो है ना तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये वाली बात बताई हो कि गवर्नमेंट के जो फंक्शन होते हैं ना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जो कारकर्दियाँ होती हैं वो बढ़ गई हैं सोसाइटी के अंदर चेंजेस की वजह से। इसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है ना वो मज़ीद ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, मुश्किल हो गए हैं। गवर्नमेंट का एरिया जो है ना वो भी बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी ने है ना हर काम का तरीका जो है ना बदल दिया है, तो काफ़ी यहाँ पे चेंजिंग्स हुई हैं, तो ठीक है। फिर आगे जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर भी जो है ना वो भी बढ़ गई है, यानी हर इंसान जो है ना अलग और ख़ास जो है ना काम कर सकता है। तो पाकिस्तान ने जो है ना क्या सिस्टम बनाया है इसके लिए कि 1947 के जो 1947 था ना उसके बाद ब्रिटिश इंडिया के जो सिविल सर्विस सिस्टम था ना वो थोड़ी-सी तब्दीली के साथ जो है ना एक अपना लिया गया था। तो इस सिस्टम की जो है ना 2 कैटेगरीज़ थी। एक थी ऑल पाकिस्तान सर्विस और दूसरी थी सेंट्रल सर्विस। तो ये अपनी कैटेगरीज़ जो है ना अच्छे तरीके से याद रखनी है। ऑल पाकिस्तान सर्विस में क्या है कि इसमें जो है ना 2 सर्विस आती हैं ऑल पाकिस्तान सर्विस में भी। एक होती है सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, दूसरी होती है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है? तो सिविल सर्विस ऑफ तो ऑल पाकिस्तान सर्विस देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। अब इन सारी चीज़ों को ना हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके देखते हैं। ऑल पाकिस्तान सर्विस में यही बताया गया कि ये जो है ना ये ऑफिसर्स फेडरल और प्रोविंशियल दोनों गवर्नमेंट्स में जो है ना काम करते हैं। सिविल सर्विस के अंदर बताया गया कि ये इंडिया सिविल सर्विस ने जो है ना उसका एक नया रूप था, जिसमें क्या शामिल था कि पुराने आईसीएस ऑफिसर्स में शामिल थे। इसके अलावा वर्ल्ड वार 2 के जो ऑफिसर्स थे ना वो भी शामिल थे, फाइनेंस ऑफिसर्स भी शामिल थे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने वाले भी ऑफिसर्स शामिल थे। किसी यानी इसका मतलब होता है कि किसी पुरानी चीज़ का जो है ना एक नया रूप लेके आना, वो पब्लिक सर्विस वो जो है ना सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर शामिल होता है। तो पुलिस सर्विस के अंदर बताया गया है कि ये इंडिया पुलिस सर्विस का जो है ना एक नया रूप था। इन ऑफिसर्स का पोस्ट जो था ना ये इंस्पेक्टर जनरल था, सुपरिटेंडेंट था, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो है ना ये पुलिस सर्विस की जो है ना एक खिदमत जो है ना प्रोवाइड करते थे पाकिस्तान को। ये ज्यादातर ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो है ना काम करते थे, ठीक है। आगे सेंट्रल सर्विस के बारे में बताया गया कि ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, और इसमें जो है ना मतलब एक इंपॉर्टेंट जो है ना सर्विस भी मौजूद थी, जैसे कि पाकिस्तान फॉरेन सर्विस। ये ऑफिसर जो है ना पाकिस्तान की अपने एम्बेसीज और अपने और जो है ना बाहर के मतलब काम को जो है ना आसान बनाते थे। डिप्लोमेटिक मिशन के बारे में यहाँ पे बताया गया, पाकिस्तान का जो ऑफिस जो किसी दूसरे मुल्क में होता था ना उसको डिप्लोमेटिक मिशन बोलते हैं, ठीक है।
تو آگے یہاں پہ تو آگے یہاں پہ جو ہے نا مزید بتایا گیا ہے کہ اکاؤنٹ سروس کے بارے میں یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا یہ گورنمنٹ کے پیسوں کا جو ہے نا حساب کتاب رکھتے ہیں، یعنی کہ پیسوں کا جو ہے نا ریکارڈ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پاکستان کسٹم اینڈ ایکسائز سروس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ باہر سے آنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اور ٹیکسز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹیکسیشن سروس کے بارے میں بتایا گیا اس ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہوتا ہے نا وہ لوگوں سے انکم ٹیکس کو جو ہے نا لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ملٹری اینڈ لینڈ کنٹرولنٹ سروس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آرمی کے ایریاز کی جو زمین اور صفائی ہوتی ہے نا روڈز اور لوکل سسٹم کی جو ہے نا وہ مطلب آرمی والے ایریاز کو جو ہے نا اس کو سنبھالتے ہیں، وہاں کے روڈز وغیرہ ہو گئے وہاں کے نظام کو تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہیں۔ پاکستان پوسٹل سروس کے بارے میں آگے بتایا گیا کہ لیٹرز اور پارسلز جو ہے نا پہنچانے کا ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ پوسٹل سروس ہوتا ہے، جیسے کوریئر سروس ہوتا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، آپ لوگ آن لائن چیزیں منگواتے ہوں گے تو آپ کے گھر میں جو رائڈرز چیزیں لے کے آتے ہیں نا وہ اصل میں پوسٹل سروس سے ہی بلونگ کرتے ہیں، ان کا جو پروفیشن ہوتا ہے وہ پوسٹل سروس سے بلونگ کرتا ہے۔ ٹریڈ سروس آف پاکستان کے اندر بتایا گیا کہ پاکستان کی جو بزنس اور ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ پاکستان اور فورن کنٹریز کے جو ہے نا سنبھالتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو کاروبار وغیرہ ہوتا ہے نا پاکستان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بیرون ملک بھی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ٹریڈ سروس کے اندر آتی ہیں۔ انفارمیٹیو سروس پاکستان کے اندر بتایا گیا کہ گورنمنٹ کی نیوز اور انفارمیشن جو ہے نا لوگوں تک پہنچانا، جیسے کہ جرنلسٹ ہو گئے جو نیوز سے ریلیٹڈ کام جو ہے نا آگے پہنچاتے ہیں، جیسے میڈیا وغیرہ۔ تو اکنامک پول کے اندر بتایا گیا کہ اکنامی کے جو ہے نا ایکسپرٹس کا گروپ تھا، لیکن یہ کیا تھا، اکنامی کے ایک ایکسپرٹس کا گروپ تھا، لیکن پرماننٹ جو ہے نا سروس ان کو نہیں ملی تھی، یعنی کہ یہ ملک کے پیسوں اور بزنس کا جو ہے نا جو ملک سے پیسے وصول ہوتے تھے نا اور اس کو جو ہے نا ملک کے ہی بہتری کے لیے نا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سینٹرل آگے یہاں پہ بتایا گیا سینٹرل سیکریٹریٹ آف سروس اینڈ جنرل کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا کون ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کے آفس اور ایڈمنسٹریشن کو جو ہے نا چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کے نظام کو جو ہے نا یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اینڈ پہ یہی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا آزادی کے بعد میں جو ہے نا پرانا ایک برٹش سسٹم جو ہے نا پاکستان کی آزادی کے بعد پرانا برٹش سسٹم یوز کیا گیا تھا جو زیادہ لا اور آرڈر کے لیے جو ہے نا بنا ہوا تھا، تو ڈیولپمنٹ کے لیے مزید جو سسٹم ہے نا وہ بنائے تھے، پھر آئین وغیرہ بنائے تھے تاکہ پاکستان کے نظام کو مزید جو ہے نا بہتری لائی جا سکے پاکستان میں۔ تو لیکچر نمبر 10 دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ سول سروس ریفارمس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ سول ریفارمس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی جابس کے سسٹم کو جو ہے نا بہتر بنانا، ریفارمس یعنی سدھار لانا، امپرومنٹ لانا۔ پاکستان بننے کے بعد جو ہے نا گورنمنٹ کو یہ محسوس ہوا تھا کہ سول سروس میں جو ہے نا کچھ پرابلمس ہے، اس لیے جو ہے نا 2 فورن ایکسپرٹس کو بلایا گیا، ایک کا نام تھا ایگر رپورٹ، ٹھیک ہے۔ ایگر رپورٹ نے کیا کیا تھا کہ رولینڈ ایگر جو ہے نا امریکہ کا ایک آدمی تھا جس نے جو ہے نا سول سروس صرف جو ہے نا بک سمارٹ یعنی کتابی ذہن جو ہے نا لوگوں کو امپورٹنس دی تھی، مطلب وہ لوگ جو کتابیں زیادہ پڑھتے تھے نا ان کو زیادہ اس نے امپورٹنس دی تھی، ٹھیک ہے۔ ریکوائرمنٹ اس نے کی تھی، یعنی کہ ایک بھرتی کا جو طریقہ ہے نا وہ پرانا تھا جس کے اندر اس نے وہ مطلب بہتری لے کے آیا تھا، اور ایگر کی جو ریکمنڈیشن تھی نا وہ یہ تھی کہ سب سروسز کو مل کر جو ہے نا سول سروس میں سول سروس آف پاکستان جو ہے نا بنائی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تنخواہ کے لیول بھی سب کے جو ہے نا کام کے حساب سے ہوں، جس کا کام زیادہ اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہو۔ پھر جرنلسٹ کو جو ہے نا مطلب امپورٹنس جو ہے نا دینی چاہیے، تو یہ بات بھی اس نے بتائی تھی کہ خالی صرف جرنلسٹ کو امپورٹنس نہ ملے بلکہ سب لوگ جو ہے نا برابر ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بتایا گیا ہے کہ گلیڈیوکس رپورٹ کے بارے میں یہاں پہ آگے بتایا گیا کہ برنارڈ گلیڈیوکس جو ہے نا اس نے بھی کہا تھا کہ اسپیشلسٹ بھی اپنے اچھے جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب عام لوگوں کو بھی امپورٹنس دینی چاہیے، ان کو بھی یہ ہائر پوسٹ جو ہے نا ملی تھی۔ تو اس نے جو ہے نا فرسٹ 5 ایئر پلان بنایا تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ گورنمنٹ نے بھی کہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، گورنمنٹ نے بھی یہ چیز مان لی کہ جرنلسٹ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، اس لیے ریکمنڈیشن دی کہ سب سول سروسز کے جو ہے نا ایکول اس کو پے دی جائے، ایکول پروموشن اور ایکول جو قانون ہوتے ہیں نا وہ نافذ کیے جائیں تاکہ سب کو جو ہے نا تنخواہ جو ہے نا اس کے کام کے مطابق ملے۔ تو پے اینڈ سروس کمیشن کے اندر یہ بتایا گیا کہ صرف اپنے سی ایس پی آفیسرز کے لیے جو ہے نا سینئر پوسٹ ریزرو کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ سول سروس کو جو ہے نا 7 گروپس میں ڈیوائڈ کرنے کی جو ہے نا ریکمنڈیشن دی گئی تھی۔ گروپ جیسے کہ گروپ ایف، گروپ ای، گروپ ایف میں جو ہے نا مطلب جو انسکلڈ ورکر ہوتے ہیں نا اس کو جو جن کے پاس اسکلس نہیں ہوتی نا ان کو ڈالا گیا تھا، جس کو 4 گریڈ دیا گیا تھا۔ تو گروپ ای کے اندر جو ہے نا جن کے تھوڑی تھوڑی اسکلس ہوتی ہیں نا اس ورکرس کو ڈالا گیا تھا، اس کو بھی 4 گریڈ دیا گیا تھا۔ پھر گروپ ڈی کے اندر جو ہے نا اسکلڈ ورکرز ہوتے ہیں نا جو ماہر ہوتے ہیں کسی کام میں اس کو ڈالا گیا تھا، جس کو جو ہے نا 5 گریڈ دیے گئے تھے۔ اور گروپ سی کے اندر جو ہے نا سپروائزر جو اسٹاف ہوتے ہیں جو نگرانی کرنے والے آفیسر ہوتے ہیں ان کو ڈالا گیا تھا، اس کو بھی 5 گریڈ دیے گئے تھے۔ گروپ بی کے اندر بیسک آفیسرز کو ڈالا گیا تھا، جو بیسک نالج ہر چیز کا جانتے ہوتے ہیں، اس کو 4 گریڈ دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے نا یہاں پہ گروپ اے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ تھے کہ جو ہر چیز کی مطلب مینجمنٹ وغیرہ کرتے ہیں نا یہاں پہ اس کو ڈالا گیا تھا۔ آگے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کو بھی 4 گریڈ دیے گئے تھے، اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مطلب ایڈمنسٹریٹو ٹائپ کی پوسٹ پہ جو ہے نا ہوتے ہیں۔ پھر ورکنگ گروپ کے بارے میں آگے بتایا گیا 1969 میں گورنمنٹ نے ایک ورکنگ گروپ بنایا تھا جس میں جو ہے نا سی ایس پی اور نان
CSP ऑफिसर जो है ना शामिल थे। वर्किंग ग्रुप का जो है ना मतलब होता है वो ये है कि ऐसी टीम जो किसी जो है ना मसले को स्टडी करके जो है ना सॉल्यूशन देती है। इस ग्रुप को जो है ना कुछ सजेशन दिए गए, जैसे सब सिविल सर्विस को जो है ना एक अपने बराबर स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन उनकी जो है ना अपनी पहचान जो है ना वो भी बनी रहे, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे बताया गया है कि हर गवर्नमेंट पोस्ट के लिए जो है ना सेम रूल्स होने चाहिए। सेंट्रल और प्रोविंशियल एम्प्लॉयज की जो सैलरी है ना उसका सिस्टम पे भी ज्यादा फर्क ना आना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के बारे में बताया गया, जो कि 1972 में हुई थी। इस कमेटी का मतलब था कि अपने एक्सपर्ट्स की जो टीम है ना, जो किसी टॉपिक पर फैसले और इम्प्रूवमेंट जो है ना सजेस्ट करती है। इस कमेटी का ये मकसद था, इस जहाँ पे एक्सपर्ट की टीम्स बैठती थी जो फैसला करती थी, और इम्प्रूवमेंट जो है ना दुनिया में के मुल्क में ये इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, इस चीज़ को सजेस्ट करती थी। इसकी इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पे रिकमेंडेशन यहाँ पे बताई गई है कि सब सर्विसेज को मिलाकर ना एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है ना बना दिया जाए सब। इसके अलावा उसने बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो पुरानी क्लासेस है ना वो खत्म करके एक ग्रेड सिस्टम लेके आया जाए, और हर पोस्ट को जो है ना एक ग्रेड उसका जो है ना काम की जो इंपॉर्टेंस है ना उसके हिसाब से जो है ना डिसाइड करना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर के जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना उसे भी गवर्नमेंट जॉब्स में जो है ना अपने लेके आया जा सके। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बताया गया कि गवर्नमेंट में ग्रेड सिस्टम जो है ना इंट्रोड्यूस हुआ पहले। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑफ रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है कि अपने यहाँ इसमें जो है ना गवर्नमेंट में जो है ना ग्रेड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ कि लोगों को जो है ना ग्रेड के मुताबिक जो है ना सैलरी मिलना स्टार्ट हुई। ग्रेड 1 जो है ना सबसे जो है ना नीचा ग्रेड, और ग्रेड 23 जो है ना सबसे बड़ा ग्रेड, बड़ा जो ग्रेड था ना वो था। तो टेक्निकल जॉब्स जो है ना उसको भी इसी सिस्टम में जो है ना शामिल कर दिया गया था। तो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के अंदर बताया गया है यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना प्रोफेशनल बनाने के लिए जो है ना डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए थे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, पुलिस ग्रुप, इनकम टैक्स ग्रुप, कस्टम ग्रुप, अकाउंट ग्रुप्स। तो ये जो ग्रुप्स के नेम है ना ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के नेम, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम है। आपने ये जैसे 15 ग्रुप्स है ना आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी 5 या 6 ग्रुप्स के बारे में पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आपने लास्ट में जो है ना अच्छे तरीके से जवाब देने हैं। तो ये नाम जो है ना आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। जैसे फॉरेन अफेयर्स ग्रुप है, ठीक है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप, अपने ट्राइबल एरियाज ग्रुप, इकोनॉमिक एंड प्लान ग्रुप। आगे यहाँ पे जो है ना अपने एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि कम्पिटिटिव एग्जाम की जो एज लिमिट है ना वो 28 से बढ़ाकर जो है ना 30 कर दी गई थी। 30 साल तक के लोग जो है ना कम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते थे। तो अपने आगे जो है ना मजीद बताया गया है यहाँ पे जो है ना सिविल सर्विस के बारे में रिफॉर्म्स के बारे में मजीद बताया गया है कि प्रमोशन जो है ना मेरिट और परफॉर्मेंस के बेस पर होने लग गई थी। ठीक ठीक है। एंट्री का जो कॉन्सेप्ट था ना उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। लेटरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये होता है कि बाहर के जो टैलेंटेड लोग थे ना उनको भी गवर्नमेंट सर्विस में जो है ना वो आ सकते थे, ठीक है। और कॉमन ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा रूल्स और रेगुलेशंस को बनाया गया था। सिविल टुडे के अंदर बताया गया है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ना फेडरल की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट के नाम पर जो है ना यूज होती थी, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है ना फेडरेशन का एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता था। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो फैसला करना और उन पर अमल करवाने का जो इख्तियार था ना, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर ये चीज आती है। तो सिविल सर्विस की कैटेगरीज यहाँ पे बनाई गई थी कि जिसके अंदर जर्नलिस्ट सर्विस बनाई गई, जहाँ सिलेक्शन होती थी जनरल एजुकेशन की बुनियाद पर होती थी, ठीक है। सिलेक्शन क्या होती थी, जनरल एजुकेशन की बुनियाद पर होती है। सेमी टेक्निकल सर्विस बनाई गई, जहाँ यूनिवर्सिटीज के एडवांस एजुकेशन को जो है ना जरूरी ठहराया गया, ठीक है। फिर आगे जो है ना रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें ये जो है ना ये सिविल जो सर्वेंट्स होती है ना उनकी सिलेक्शन यहाँ पे की गई थी कि ये जो है ना मेरिट बेस पे की गई थी कि जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे, जो ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा होगा ना वो मतलब अच्छे नंबर वाले लोग बच्चों को जो है ना ज्यादा तालीम हासिल करने की जो है ना अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो प्रोवाइड की जाएंगी, उनकी फाइनेंशियली भी हेल्प की जाएगी और हर लिहाज से। फिर आगे जो है ना हर पोस्ट का जो है एडवर्टाइजमेंट होता है ना वो दिया जाएगा। सिलेक्शन बोर्ड्स और कमेटी जो है ना अपने वो कैंडिडेट जो है ना खुद चूज कर सकते हैं कि उसमें किस जो है ना बोर्ड का इंतखाब करना है। हर प्रोविंस को जो है ना प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, ठीक है। फिर आगे जो है ना यहाँ पे अपने रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में यहाँ पे जो है ना जिक्र किया गया है। तो अच्छा यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अंदर बताया गया कि ग्रेड 20 से और उससे ऊपर वाले लोग जो है ना ये प्रेसिडेंट की भी फील्ड में आ सकते हैं। ग्रेड 17 से 19 तक के लोग जो है ना ये एस्टेब्लिश्ड थे। ग्रेड 3 से 16 तक के लोग ये मिनिस्ट्री की फील्ड में थे, और ग्रेड 1 से 2 लोग जो है ना ये हेड ऑफिस की उसमें अथॉरिटी में थे, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना ये भी आपने याद रखना है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के। मेन रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर बताया गया कि सिविल सर्विस को जो है ना सिलेक्ट करने के लिए जो है ना ये बनाए गए थे कुछ पॉइंट्स बनाए गए थे। उनमें से ये है कि एफपीएससी जो है ना यानी कि फेडरल लेवल पर जो काम करती है ना उसको बनाया गया था। प्रोमोशन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना उसको बनाया गया था। इसके अलावा डिपार्टमेंट कमेटी भी सिलेक्शन और प्रमोशन में जो है ना रोल प्ले करती थी, ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बताया गया। प्री सर्विस ट्रेनिंग के अंदर बताया गया कि जॉब स्टार्ट करने से पहले जो है ना दी जाने वाली जो ट्रेनिंग होती है ना उसको प्री सर्विस ट्रेनिंग बोलते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग के अंदर बताया गया कि जॉब के दौरान जो है ना दी जाने वाली जो ट्रेनिंग होती है ना ताकि ऑफिसर जो है ना अपने स्किल्स को अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सके। तो आगे जो है ना यही बात बताई गई है कि यहाँ पे मजीद जो है ना ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन बताया गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अलावा पाकिस्तान अकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसके अलावा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज। तो ये जो मेजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है ये आपकी शोर के लिहाज से अहम है, आपने अच्छे तरीके से देखना है। तो कॉन्सेप्ट में यही बताया गया है कि
ریفارمس ہے، یعنی کہ سول سروس سسٹم میں جو ہے نا بہتری لانے کا جو ایک چینجنگ جو طریقہ ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں. پھر آگے جو ہے نا کیڈری پوسٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسی پوسٹ جو کسی اسپیسیفک آکوپیشنل گروپ کا جو حصہ ہوتی ہے نا اس کو کیڈری پوسٹ بولتے ہیں. اپنے ایکس کیڈری پوسٹ یعنی کہ ایسی مینیجریل جو مینیج کرنے والی پوسٹ ہوتی ہے نا جو کسی آکوپیشنل گروپ کا پارٹ نہیں ہوتی. تو جرنلسٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسے آفیسر جو ٹیکنیکلی اسپیشلسٹ نہ ہو اور ڈفرینٹ گورنمنٹ پوزیشن پر کام کر سکتے ہو. تو یہ جو 4 مطلب جو کانسیپٹس ہیں نا آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھا کریں، یہاں سے شارٹ آتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے نا آپ کا لیسن نمبر 11 ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن آئین. مطلب 1973 کا جو ہے نا یہاں پہ آئین بتایا گیا ہے، جس کے اندر نا یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں نا یہ ایک ایسا قانون ہوتا ہے جو ملک کا جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ چلانے میں ایک رولس بناتا ہے. تو پریمیبل کا مطلب بتایا گیا ہے یہاں پہ، یعنی مقدمہ، یعنی کہ کسی چیز کی شروعات کرنا. تو پریمیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ڈاکومنٹ کا جو انٹروڈیوس کروانا ہے نا، یعنی اس کی شروعات کروانا. اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے جو پریمیبل تھے نا اس میں بتایا گیا تھا کہ پوری کائنات جو ہے نا پوری کائنات پر ایک حقیقی حکومت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. پاکستان کے لوگ جو ہے نا صرف اللہ کی دی ہوئی جو حدود ہے نا اس میں رہ کر ملک کے نظام کو چلائیں گے. تو ریپبلک آف پاکستان کے اندر بتایا گیا پاکستان کو فیڈرل اسلامک ریپبلک کہا گیا تھا. فیڈرل کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان میں نا پروونسز ہیں. فیڈرل کون ہے؟ پاکستان میں کچھ پروونسز ہیں جو مل کر جو ہے نا ایک ملک بناتے ہیں. اسلامک ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کے نظام جو اسلام کے پرنسپلز پہ، جو اسلام کے اصولوں پہ قائم ہوتے ہیں. تو ٹیریٹریز آف پاکستان کے اندر بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نا پاکستان کے کچھ علاقوں میں پاکستان کے یہ والے علاقے شامل تھے جیسے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کو جو ہے نا کیپٹل ٹھہرایا گیا. اسلام آباد جو ہے نا پورے پاکستان کا کیپٹل ہے، جبکہ جو لاہور ہے نا یہ پنجاب کا کیپٹل ہے. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو آگے اسٹیٹ ریجن کے اندر بتایا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلس جو ہے نا 2 ہیں. ایک اسلام پاکستان کا اسٹیٹ جو ہے نا ریلیجن ہے. پاکستان کا جو ایک ریلیجن ہے نا مذہب ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب پاکستان کی جو رسمیں ہیں نا وہ مذہب اسلام کے مطابق جو ہے نا فالو کی جائیں گی. ڈیفینیشن آف اسٹیٹ جو ہے نا یہ بہت انپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سننا ہے. ڈیفینیشن آف اسٹیٹ یہ آپ کے پیپر میں لازمی آئے گی اور آ سکتی ہے. تو اس کے جو ہے نا یہ ایک جو ہے نا ریاست ہوتی ہے جو ملک کے اندر نا قوانین کو نافذ کرتی ہے. اس کے اندر جو ہے نا 7 جو ہے نا اسٹیٹس شامل ہوتی ہے: فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، پارلیمنٹ، پروونشل اسمبلیز، لوکل اتھارٹیز وغیرہ. ٹھیک ہے. تو آگے جو ہے نا اپنے گورنمنٹ کمپرائز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ ڈفرینس بتایا گیا ہے. سب سے پہلے ڈفرینس اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے اندر ڈفرینس. تو اسٹیٹ ایک پرماننٹ سسٹم ہوتا ہے. اس کے جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ رہتے ہیں، جیسے پارلیمنٹ، کورٹس، ڈپارٹمنٹ. کیا ہے؟ اسٹیٹ ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک جو ہے نا ادارہ ہوتا ہے جس کے جو قوانین ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ رہتے ہیں. جیسے پارلیمنٹ ہے، کورٹ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں. جبکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا وہ ان لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جو ان انسٹیٹیوشنس کو چلاتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا الیکشنز کے ذریعے آتے ہیں اور ایک فکس ٹائم پیریڈ کے لیے آتے ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ چیز آپ اچھے سے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسٹیٹ جو ہے نا اب ہمیشہ رہتی ہے لیکن گورنمنٹ جو ہے نا بدلتی رہتی ہے. تو گورنمنٹ کے یہاں پہ کچھ مین پوائنٹس یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ یہاں پہ الیکٹریکل ریپرزینٹیٹیو، اس کے علاوہ جوڈیشنری ایگزیکٹو. الیکٹریکل ریپرزینٹیٹیو کے اندر کیا بتایا گیا؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عوام کو کی ووٹ سے جو ہے نا سلیکٹ ہوتے ہیں. انہیں پولیٹیشین کہتے ہیں. جوڈیشنری کا مطلب ہوتا ہے کہ عدالت کا جو نظام چلانے والے لوگ ہوتے ہیں نا اس کو جوڈیشنری بولتے ہیں. آگے جو ہے نا ایگزیکٹو کا مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کو جو ہے نا ڈیسیژنز کا آگے ملک کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں. جیسے پولیس ہے. پولیس کیا کرتی ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ نے سسٹم بنایا ہے نا، پولیس کیا کرے گی؟ اس نظام کو جو ہے نا لوگوں کے اوپر اپلائی کرے گی، نافذ کرے گی، کنٹرول کرے گی لوگوں کو، تاکہ لوگ جو ہے نا اس قانون کو ان کے اوپر نا عمل کریں. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے نا فیڈریشن آف پاکستان کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف یونٹس کا جو ہے نا مل کر ملک جو ہے نا چلانا یا ملک کو بنانا. پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس میں جو ہے نا پروونسز کو کافی سارے پروونسز جو ہے نا وہ مل کر کسی نظام کو چلاتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کے جیسے 14 کانسٹیٹیوشن کے جو ہے نا 41 کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 41 کے مطابق نا پریزیڈنٹ پاکستان کی جو یونٹی ہے نا یہ وحدت کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ آف پاکستان کے اندر بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے نا اس کو مجلس شورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. اردو میں پارلیمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ مجلس شورا. اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں: پریزیڈنٹ، نیشنل اسمبلی اور سینیٹ. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے نا اپنا یہ نیشنل اسمبلی کے بارے میں بتایا کہ نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کا لوور ہاؤس ہوتی ہے. اس کا ممبر جو ہے نا عوام کا جو ہے نا ڈائریکٹ ووٹ سے الیکٹ ہوتے ہیں. نیشنل اسمبلی کے ممبرس عوام کے ووٹ سے جو ہے نا ڈائریکٹ سلیکٹ ہوتے ہیں. پھر نیشنل اسمبلی میں جو ہے نا مسلم ممبرس بھی ہو سکتے ہیں، نان مسلم دونوں شامل ہوتے ہیں. اور آگے جو ہے نا یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹیبل دی گئی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس ہیں نا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو یہ آپ کی ایگزامس کے لحاظ سے کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا اس کو بس ایک نظر دیکھ لیجیے، کیا پتہ اس سے ایک MCQ آ جائے.
اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ بلوچستان میں جنرل سیٹس جو ہے نا وہ 14 ہیں اور جس میں سے 3 عورتیں ہیں اور جنرل سیٹس 14 ہیں اور 3 عورتیں ہیں تو ٹوٹل 17 ہو گئی. پنجاب میں جو ہے نا 148 جنرل سیٹس ہیں اور وومن جو ہے نا مطلب عورتیں جو ہے نا 35 ہے اور ٹوٹل 183. تو یہ چیزیں یہاں پہ بتائی گئی. آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے گا. سینیٹ کے اندر آگے بتایا گیا 10 سینیٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا نا ایک اوپر والا ہاؤس ہوتا ہے. اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ تمام پروونسز کو جو ہے نا برابر کا ریپرزنٹیشن ملے. سینیٹ میں جو ہے نا ٹوٹل 100 ممبرز ہوتے ہیں. پروونسز سے جو ہے نا ممبرز سلیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر عورتوں کے لیے جو ہے نا یہاں پہ عورتوں کے لیے بھی سیٹ ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بتایا گیا کہ یہ پورے پاکستان کے لیول پر کام کرتی ہے. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 90 کے مطابق نا ایگزیکٹو اتھارٹی گورنمنٹ چلانے کا جو ہے نا اختیار پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ نا اپنے کام جو ہے نا خود ہی اپنے آفیسرز کے ذریعے جو ہے نا کرواتا ہے. ایگزیکٹو اتھارٹی کا مطلب آگے جو ہے نا یہاں پہ ایگزیکٹو اتھارٹی کے بارے میں بھی ذکر ہو رہا ہے. ایگزیکٹو اتھارٹی وہ ہوتے ہیں جو ملک کے فیصلے اور لاس کو جو ہے نا دنیا میں مطلب ملک میں امپلیمنٹ کرتا ہے. کیبنٹ کے اندر بتایا گیا. یہ آپ کو شارٹ کوسچن کے لحاظ سے اہم ہے. کیبنٹ گورنمنٹ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتے ہیں. اس میں جو ہے نا پرائم منسٹر بھی آتے ہیں, منسٹرز بھی آتے ہیں. پرائم منسٹر جو ہے نا کیبنٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ کو امپورٹنٹ جو ہے نا میٹرز میں ایڈوائس دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منسٹرز کی وہ ٹیم جو ملک کو امپورٹنٹ ڈیسیژن جو ہے نا لینے میں مدد دیتی ہے. تو کانسٹیٹیوشن میں باڈیز کے اندر بتایا گیا کہ کچھ انسٹیٹیوشن جو ہے نا ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی جو ہے نا کسی کانسٹیٹیوشن کے ذریعے جو ہے نا بنائے جاتے ہیں. ان کا جو کام ہوتا ہے نا ملک کے امپورٹنٹ میٹرز کو جو ہے نا مینج کرنا ہوتا ہے, پالیسیز کو بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے نا بتایا گیا ہے نیشنل اکنامک کونسل کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا ملک کی اکنامک سے ریلیٹڈ جو ہے نا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن مطلب کانسٹیٹیوشن کے آئین کا جو آرٹیکل 156 ہے نا اس کے مطابق اس کا جو چیئرمین ہے نا وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے, پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کو جو ہے نا چیک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی پاکستان کی جو مطلب ملک کی جیسے مطلب پیسوں والی جو نظام ہے نا اس کو چیک کرنا ہوتا ہے. پھر نیشنل اکنامک کونسل کے اندر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا NEC اس کو بولتے ہیں. اس کا ابریویشن ہوتا ہے نا NEC بھی اس کو شارٹ فارم میں بولتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ باڈی ہے جو پاکستان کی جو اکنامک اور فائنینشیل اور سوشل پالیسیز بننے کا جو ہے نا ایک فریم ورک جو ہے نا پرووائڈ کرتی ہے. اکنامک کا مطلب ہوتا ہے اپنے ایک معاشی یا پھر جو پیسوں سے ریلیٹڈ جو چیز ہوتی ہے نا اس کو اکنامک بولتے ہیں. تو فریم ورک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کا جو بیسک پلان ہوتا ہے یا اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو فریم ورک بولتے ہیں. تو نیشنل فائنانس کمیشن کے مطابق جو ہے نا یہاں پہ بتایا گیا کہ آرٹیکل 160 جو ہے نا اس کے تحت NFC کو جو ہے نا بنایا گیا تھا. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ملک کی گورنمنٹ کو گورنمنٹ کے جیسے ٹیکسز وغیرہ ہوتے ہیں نا ان ساری چیزوں کے نظام کو جو ہے نا صحیح طریقے سے چلانا. تو آگے جو ہے نا کورٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آرٹیکل 192 کے مطابق ہائی کورٹ میں جو ہے نا چیف جسٹس اور دوسرے جو ججز ہوتے ہیں نا وہ شامل ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے لاس کی جو لاز ہوتے ہیں نا اس کو ملک میں نافذ کرنا. ٹھیک ہے. آگے پروویژن آف دا سروس کے اندر بتایا گیا کہ آرٹیکل 240 گورنمنٹ امپلائیز کی سروس کنڈیشنز یعنی جاب کے جو رولز ہوتے ہیں نا اور اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ والا جو پروویژن ہوتا ہے نا پروویژن آف سروس اس کے بارے میں بتاتی ہے. جس کے اندر کیا بتاتی ہے کہ فیڈرل سروس کے رولز ہے نا پارلیمنٹ اور پروونشل سروس کے رولز پروونشل اسمبلی بناتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب تمام جو قوانین ہوتے ہیں نا یہ ایک پروونشل اسمبلی ہی بناتی ہے. تو سول سروس کے اندر آگے بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آرٹیکل جو ہے نا 242 کے مطابق یہ باڈی جو ہے نا فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے لیے جو ہے نا کافی امپلائیز کو جو ہے نا ریکروٹ کرتی ہے یعنی کہ نئے امپلائیز کو جو ہے نا سلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ کنکلوژن میں کانسٹیٹیوشن گورنمنٹس ہو گئے اس کا جو بیسک جو فریم ورک ہوتا ہے نا وہ پرووائڈ کرنا. کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن گورنمنٹ کا جو بیسک فریم ورک ہوتا ہے نا وہ لوگوں کی بہتری کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا حکومت کی نا 3 برانچز کا اسٹرکچر بناتی ہے. ایک ہوتی ہے ایگزیکٹو, ایک ہوتی ہے لیجسلیچر اور دوسری اور ایک اور ہوتی ہے جوڈیشری. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا NEC اور NFC جیسی امپروومنٹ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ باڈیز بھی بناتی ہے. تو امپورٹنٹ کانسیپٹ کے اندر بتایا گیا ہے سب سے پہلے نیشنل اکنامک کونسل کے بارے میں بتایا گیا کہ ملک کی اکنامی فائنینشیل اور سوشل پالیسیز کو بناتی ہے. فیڈریشن یعنی مختلف جو پروونسز اور ایریاز جو ہوتے ہیں نا اس کے مل کے کام کرتے ہیں. پارلیمنٹ یعنی کہ یہ لیجسلیچر ہوتی ہے جس میں جو ہے نا نیشنل اسمبلی پروونشل اور سینیٹ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. NFC کے اندر بتایا گیا کہ ہر 5 سال بعد جو ہے نا یہ بنتی ہے اور ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ریسورسز جو ہے نا فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ میں جو ہے نا کیسے ڈیوائڈ ہوتے ہیں. تو آگے یہاں پہ لیسن نمبر 12 ہے جس کے اندر رولز آف بزنس کے بارے میں بتایا گیا کہ رولز آف بزنس میں جو ہے نا کیا ہوتا ہے رول آف بزنس ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا کام جو ہے نا وہ کرنے کے طریقے اور رولز ہوتے ہیں اس کو رولز آف بزنس بولتے ہیں. گورنمنٹ اسٹرکچر کے اندر بتایا گیا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کو اسٹرکچر یعنی کانسٹیٹیوشن ملک کا قوانین کس طرح سے بناتا ہے یہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ آگے بتائیے گورنمنٹ کے 3 میجر جو ہے نا پارٹس ہوتے ہیں لیجسلیچر, جوڈیشری, ایگزیکٹو جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا بار بتایا. تو آگے جو ہے نا یہاں پہ اسٹرکچر آف گورنمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا یہ اسٹیٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے.
प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट के काम को जो है ना चलाने की जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। आगे पीएम का जो है ना अंदर एक कैबिनेट होती है, कैबिनेट में डिफरेंट कैबिनेट में जो है ना डिफरेंट मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, जो ये मिनिस्टर्स क्या करते हैं, अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज को जो है ना हैंडल करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट होता है जो किसी खास काम की जो है ना जिम्मेदारी रखता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, पैसों के से रिलेटेड काम करना, तो ये इन सारी चीज़ों की। तो आगे जो है ना यहाँ पे बताया गया ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कि इसमें भी ये बताया कि प्रेसिडेंट जो होता है ना वो स्टेट का हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो एग्जीक्यूटिव होता है, और कैबिनेट जो होता है ना क्या होता है, ये जो है ना फिर बाकी मुल्क के निज़ाम को चलाता है। तो रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर बताया गया है कि मिनिस्ट्रीज का रूल्स ऑफ बिजनेस में ना मिनिस्ट्रीज का काम करने का ना जो है ना तरीका बताया जाता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 90 से 99 के अकॉर्डिंग जो है ना रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए गए थे। रूल्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का काम करने का जो रूल होता है ना और उसकी जो जिम्मेदारियां होती है, इसमें हमें ये चीज पता चलती है। मिनिस्ट्रीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बताया गया है कि ये जो है ना इसमें कुछ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्री को देख लेते हैं यहाँ पे कि एक मिनिस्ट्री के अंदर जो है ना डिवीजन होती है। डिवीजन का मतलब होता है कि मिनिस्ट्री के एक छोटा हिस्सा होता है जो स्पेसिफिक काम करता है, मतलब एक एक मिनिस्ट्री के अंदर ना बेशुमार डिवीजन मौजूद होती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है ना फाइनेंस डिवीजन होती है, इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक डिवीजन होती है, रेवेन्यू वगैरह होती है। एक एक लफ्ज को हम डिटेल लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो उससे पहले व्यूअर्स आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को जो है ना लाइक कर दें। मैं आपके लिए काफी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत से जो है ना ये वीडियोस बनाती होती हूँ। हाँ, तो आगे जो है ना यहाँ पे बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसके अंदर जो है ना डिफरेंट डिवीजन होते हैं, जैसे कि फाइनेंस डिवीजन, इकोनॉमिक जो डिवीजन होती है ना वो होती है, स्टैटिस्टिक डिवीजन होती है, रेवेन्यू वगैरह। फाइनेंस डिवीजन के फंक्शंस, मेन फंक्शंस बताए गए हैं यहाँ पे। तो फाइनेंस डिवीजन के जो मेन फंक्शंस है ना ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 फंक्शंस बताए गए हैं, यहाँ पे लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट काम है वो यही है कि फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस को जो है ना हैंडल करना, एनुअल बजट को बनाना और नेशनल असेंबली में जो है ना प्रेजेंट रहना। इसके अलावा टैक्सेस से मिलने वाली जो इनकम होती है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। गवर्नमेंट के जो है इंटरनल और एक्सटर्नल जो लोन्स होते हैं ना, जो उनका जो सिस्टम होता है उसको मैनेज करना गवर्नमेंट की। इसके अलावा करेंसी पॉइंट से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं ना उसको देखना। बैंकिंग और स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स होते हैं ना उसको कंट्रोल करना। इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर बताया गया है कि ये डिवीजन का फोकस जो है ना मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर होता है। इसका जो फोकस होता है, इसका काम होता है फॉरेन कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन से जो है ना एक इकोनॉमिक की एक जो रेजिस्टेंस होती है ना उस पर बातचीत करना। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज को जो है ना एक टेक्निकल हेल्प देना, इंटरनेशनल इकोनॉमिकल चेंजेस भी लेके आना। और आगे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यहाँ पे डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवीजन के बारे में बात की गई है कि इसमें बताया गया है कि मिनिस्ट्री का जो पॉलिटिकल हेड होता है ना मिनिस्टर होता है। मिनिस्ट्री का पॉलिटिकल हेड कौन होता है? मिनिस्टर होता है। और ये जो है ना लेकिन डिवीजन को एक प्रोफेशनल ऑफिसर जो है ना हैंडल करता है, जिसे सेक्रेटरी बोलते हैं। तो फाइनेंस डिवीजन में जो है ना सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी भी शामिल होती है, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को कंट्रोल करती है। बजट वाला की जो सेक्रेटरी होती है ना वो भी शामिल होती है। फाइनेंस की सेक्रेटरी भी यहाँ पे शामिल होती है। तो अगले यहाँ पे बताया गया पेज में कि यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। वही स्ट्रक्चर है जिसके मैं पीछे एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ। तो अटैच डिपार्टमेंट के अंदर के बारे में आप बात कर लेते हैं। अटैच डिपार्टमेंट क्या होते हैं कि इसका मतलब होता है कि किसी मिनिस्ट्री के अंदर जो है ना काम करने वाला जो डिपार्टमेंट होता है ना उसको अटैच डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये सारे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मिले हुए होते हैं। ये डिपार्टमेंट जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में होते हैं और मिनिस्ट्री के को जो है ना उसकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं। इसके अंदर फाइनेंस डिवीजन मिलिट्री आती है, ये मिलिट्री का फाइनेंशियल मैटर को जो है ना सॉल्व करते हैं। इसके अलावा कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान आता है, ये गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं ना उसको मेंटेन करते हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आता है, ऑडिट का मतलब होता है कि किसी रिकॉर्ड को या पैसों की जो चेकिंग होती है ना उस चीज को बोलते हैं। तो आगे जो है ना ऑटोनॉमस बॉडीज के बारे में बताया गया है कि ये जो है ना खुद से फैसले करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसको ऑटोनोमस बॉडीज बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है ना अपने काम करते हैं। इनके अपने जो है ना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मतलब होता है कि फैसला करने वाली जो कमेटी होती है ना उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। तो आगे यहाँ पे अपने जो है ना कंक्लूजन के अंदर यही वाली बात बताई गई है कि पाकिस्तान की फेडरल जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ना उसमें मिनिस्टर्स शामिल होते हैं जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को जो है ना उसको कंट्रोल करते हैं, उसका हेड होते हैं। फेडरल सेक्रेटरीज जो है ना वो मिनिस्टर्स की हेल्प करती हैं या पॉलिसीज को बनाती हैं और उन पर जो है ना अमल करवाती हैं, ठीक है। मिनिस्टर जो है ना अपने मिनिस्ट्री के काम की जिम्मेदारी जो है ना खुद लेता है। तो आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंदर कैबिनेट के बारे में बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस में जो है ना काम करने वाले जो मिनिस्टर्स का ग्रुप होते हैं ना उसको कैबिनेट बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना आप इसको अच्छे तरीके से देखा करें, जो कॉन्सेप्ट में जो पॉइंट्स बताए गए होते हैं ना, तो ये 5 यहाँ पे 6 पॉइंट्स बताए गए हैं। आप इसको अच्छे तरीके से सुनिए और
यहाँ से ना क्वेश्चन आता होता है। तो ये वही लेक्चर की जो छोटी सी एक्सप्लेनेशन होती है, ये जस्ट वही बातें यहाँ पे बताई गई होती है। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसको आपने अच्छे तरीके से लिखना होगा। तो कैबिनेट कौन होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो गाइडेंस होती है ना, उसमें काम करने वाले जो मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है ना, उसको कैबिनेट बोलते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर बताया गया कि गवर्नमेंट का काम करने वाले जो रूल्स और तरीके होते हैं ना, उसको रूल्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं। मिनिस्ट्री के अंदर बताया गया कि एक से ज्यादा जो डिवीजन का ग्रुप होता है ना, डिवीजन के अंदर बताया गया है कि एक स्पेसिफिक काम करने के लिए जो बनाया गया यूनिट होता है ना, उसको डिवीजन बोलते हैं। फंक्शन के अंदर बताया गया कि डिवीजन की जिम्मेदारी वाले जो काम होते हैं ना, ऑटोनोमस बॉडी के अंदर बताया गया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपना जो बोर्ड का ऑफ गवर्नेंस रखती है ना, और अपने डिसीजन खुद लेती है। तो आगे जो है ना लेसन नंबर 13 है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। ये आपने अच्छी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिफाइन जो है ना याद रखनी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है। गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है जिसका मकसद होता है आवाम की खिदमत करना, प्रॉफिट कमाना, जैसे कि रोड्स, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह, जैसे हॉस्पिटल वगैरह। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कौन होती है कि ये कंपनीज और बिजनेस जो है ना उसको चलाती हैं। इसका मेन काम होता है प्रॉफिट को चलाना और कस्टमर्स को सर्विस देना। तो इसमें जो है ना कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पब्लिक सेक्टर्स लॉ और इंस्टीट्यूशन के मुताबिक जो है ना काम करता है। तो आगे जो है ना यहाँ पे अपने काफी सारे जो ये नाम बताए हुए हैं ना, तो इन सबको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर्स और लॉज के जो आइन होते हैं ना, उसके मुताबिक जो है ना काम करना, जबकि प्राइवेट सेक्टर्स अपने रूल्स को ही फॉलो करता है। ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर बताया आगे जो है ना यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजंस में जो है ना बहुत से लोग और इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं, इसलिए जो है ना प्रोसेस जो है ना स्लो हो सकता है। विजिबिलिटी एंड आगे जो है ना यहाँ पे यही बात बताई गई है कि आगे एम्बिग्यूटी को देख लेते हैं। एम्बिग्यूटी के अंदर क्या बताया गया है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, उनकी उनकी जो सक्सेस होती है ना, और उसके ऊपर काम करना। ठीक है, उनकी सक्सेस, उनका प्रॉफिट वगैरह जो है ना मेजर करना। लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है ना, उनकी जो कामयाबी होती है, इस बात से होती है कि वो लोगों को जो है ना कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, यानी गवर्नमेंट का जो मकसद होता है वो पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको सॉल्व करना होता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर्स आपको पता है पैसा कमाते हैं। तो प्लूरलिस्टिक डिसीजन मेकिंग के बारे में बात हो रही है कि पब्लिक सेक्टर्स में जो है ना डिसीजन लेना जो है ना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स के जो है ना लोग शामिल होते हैं। इसमें सबकी नीड्स जो है ना अलग होती है, सबकी जो जरूरियात होती है ना वो अलग होती है। जैसे एक एरिया के लोग जो है ना रोड चलाते हैं और दूसरे एरिया के लोग जो है ना डैम्स चलाते हैं। गवर्नमेंट को जो है ना सबकी जरूरियात को जो है ना बैलेंस करना होता है। ठीक है। फिर आगे विजिबिलिटी के बारे में बताया गया कि गवर्नमेंट मैनेजर्स को जो है ना गवर्नमेंट मैनेजर्स के काम को जो है ना ज्यादा लोगों की नजर में जो है ना अपने गवर्नमेंट जो मैनेजर्स काम होते हैं ना वो ज्यादा तो लोगों की नजर में होते हैं, क्योंकि मीडिया और पब्लिक उनकी जो परफॉर्मेंस को जो है ना ऑब्जर्व करती है। अगर गवर्नमेंट जो है ना डिपार्टमेंट अच्छा या बुरा काम करता है ना, तो वो जल्दी रिपोर्ट कर दिया जाता है। विजिबिलिटी का यही मतलब होता है कि सबके काम पर नजर रखना। मार्केट के डिफरेंस के बारे में आगे बताया गया है। मार्केट के बारे में बताया गया कि प्राइवेट जो कंपनीज होती है ना, मार्केट कंपटीशन का सामना करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज को आमतौर पर जो है ना कंपटीशन का प्रेशर नहीं होता। या ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स में जो है ना प्राइसेस डिमांड और सप्लाई जो है ना ये डिसाइड करती है कि जबकि गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर्स होती है ना उसकी जो प्राइसेस होती है ना वो डिमांड और सप्लाई से डिसाइड करती हैं। ये कि यानी कि अगर जिस यूनिवर्सिटी की जिस जिस पब्लिक सेक्टर की जो है ना डिमांड ज्यादा होगी ना, उसकी प्राइस भी हाई होंगी। जबकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है ना उसका खर्चा बजट के मुताबिक होता है, उसकी जो है ना प्राइस इतनी नहीं होती। तो आगे यहाँ पे पब्लिक गुड्स के बारे में यहाँ पे बताया गया कि सबके लिए जो है ना फैसिलिटीज बराबर होनी चाहिए, कि सबकी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ना उन्हें पब्लिक गुड्स बोलते हैं। जैसे कि रोड या फिर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। फिर आगे जो है ना यहाँ पे लेस एफिशिएंट के बारे में बात की गई है कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पर अक्सर जो है ना ये क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की ना तरह रिसोर्सेज का जो बेस्ट यूज है ना वो नहीं कर सकती। यानी कि कम रिसोर्सेज में जो है ना ज्यादा आउटपुट हासिल करना उनके लिए जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। आगे यहाँ पर पावर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट के पास जो है ना कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, जैसे कि रेगुलेट पावर। आगे पर रेगुलेट पावर में हम क्या देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना लॉस बनाकर प्राइवेट सेक्टर्स को जो है ना कंट्रोल करती है। आगे जो है ना बताया गया है कोर्ट्स पावर के बारे में कि ये जो है ना अगर कोई लॉ ब्रेक करे ना तो गवर्नमेंट उसको पनिश करती है। तो आगे जो है ना आगे परवेजिव पावर के बारे में बताया गया कि गवर्नमेंट के रूल्स सब लोगों पर जो है ना अप्लाई होते हैं। जैसे ट्रैफिक लॉस होते हैं ना, इस सब के लिए बनाए जाते हैं, ना कि किसी एक बंदे के लिए। तो आगे ये बात की गई है। कंक्लूजन का मतलब कंक्लूजन के अंदर ये बताया गया है, एम्बिग्यूटी के बारे में बताया गया है, सॉरी कंसेप्ट के अंदर जो है ना एम्बिग्यूटी के बारे में बताया गया है कि गोल्स का जो क्लियर ना होना, के मकसद को जो है ना क्लियर ना होना और जिन्हें मैयत जो है ना करना मुश्किल हो, उसके एम्बिग्यूटी बोलते हैं। ठीक है। प्लूरलिस्टिक डिसीजन के बारे में बताया गया है कि यानी कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग जो है ना मिलकर जो डिसीजन लेते हैं। विजिबिलिटी के अंदर बताया गया कि पब्लिक ऑफिसर्स का जो काम होता है ना मीडिया और पब्लिक की नजर में जो है ना होता है। ठीक है। तो आगे जो है ना यहाँ पे लेसन नंबर 14 है आपका। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स के बारे में बताया गया है। रूल का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना किसी पर्सन की जो जिम्मेदारी या पोजीशन होती है ना उसको रोल बोलते हैं।
ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ایک مینیجر کا رول ہے سیلس کو ہینڈل کرنا, ٹھیک ہے, اور اسٹوڈنٹ کا رول ہوتا ہے پڑھائی کرنا. آرگنائزیشن تبھی سکسیسفل ہوتی ہے جب ہر انسان کو جو ہے نا اپنا جو اس کی کارکردگی ہے نا اس کا پتا ہو, ٹھیک ہے. اس کے 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ کلیئر آبجیکٹو, یعنی کہ واضح مقصد کسی چیز کا. ہر پرسن کو جو ہے نا پتا ہونا چاہیے کہ اس نے جو ہے نا کیا اچیو کرنا ہے اور کیا نہیں. کلیئر ڈیوٹیز کے بارے میں یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ ہر انسان کو جو ہے نا اپنے کام اور رسپانسبلٹیز کا پتا ہونا چاہیے. کلیئر اتھارٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی جو ہے نا پاس کتنا ڈیسیژن لینے کا حق ہے پڑا. آرگنائزنگ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ آرگنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کاموں کو جو ہے نا اس طرح ارینج کرنا کہ اس کو پتا کہ سب کو پتا ہو کون کس کو جو ہے نا رپورٹ کرے گا اور کون کام جو ہے نا اسموتھلی ہینڈل کرے گا. آرگنائزنگ دس اسٹیپ کے اندر بتایا گیا کلاسیفیکیشن آف اتھارٹیز, کلاسیفیکیشن آف ایکٹیویٹیز کے بارے میں اس میں سب سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ ایک جیسے کاموں کو جو ہے نا الگ الگ پہچاننا. تو گروپنگ آف ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ملے جلے جو کام ہوتے ہیں نا اس کو گروپ کی شیپ میں ڈالنا. پھر اسائننگ مینیجر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہر گروپ کے لیے جو ہے نا ایک رسپانسبل مینیجر ہوتا ہے نا وہ بنانا. کوآرڈینیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے سب ڈپارٹمنٹس کو جو ہے نا کاموں میں کنیکشن اور ٹیم ورک جو ہے نا پرووائڈ کرنا. آرگنائزیشن کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے کہ ایک فارمل جو اسٹرکچر ہوتا ہے نا اس کو آرگنائزیشن بولتے ہیں, جہاں لوگ ڈفرینٹ رولس اور پوزیشنس کو جو ہے نا جہاں پہ نا لوگ ڈفرینٹ جو کارکردگی ہوتی ہے نا اس کے مطابق کام کرتے ہیں. جیسے اسکول, ہاسپٹل اور کمپنیز. یہ آرگنائزیشن کی جو ڈیفائن ہے نا یہ آپ کی بہت اہم ہے, آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. تو ٹائپس آف آرگنائزیشن بھی آپ نے اسے ڈیفائن میں ہی لکھنا ہوگا. اگر لانگ میں پوچھا جا سکتا ہے نا آرگنائزیشن اینڈ ٹائپس کو ایکسپلین کرے تو آپ نے تب تو لکھنا ہی ہے یہاں پہ, ورنہ اگر شارٹ میں پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے صرف ٹائپس کے نام لکھ دینے, آپ نے ٹائپس کو ایکسپلین نہیں کرنا. فارمل آرگنائزیشن کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے, یہ بھی آرگنائزیشن کا ہی ٹاپک ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ فارمل آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے جو پراپر رولز اور گولز کے ساتھ جو ہے نا بنائی جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اسکول, ہاسپٹل وغیرہ. اور انفارمل آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے کہ یہ وہ کہ جو لوگوں کے درمیان جو ہے نا نیچرلی بن جاتی ہے, جیسے آفس میں جو ہے نا دوستی اور پرسنل کنیکشن وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ والی بات ہو رہی ہے. تو آگے جو ہے نا یہاں پہ بتایا گیا فارمل انفارمل جو آرگنائزیشن ہوتی ہے نا اس کا ڈفرینس بھی آپ سے شارٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تو یہ آگے آرگنائزیشنل لیولز اینڈ آگے اس میں بھی ٹیبل میں بھی یہ والی بات بتائی گئی ہے جس کو ہم ڈیٹیل لیکچر میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے. آرگنائزیشنل لیولز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آرگنائزیشن میں جو ہے نا ڈفرینٹ لیولز اپنے جو ہے نا یعنی درجے ہوتے ہیں, جیسے ٹاپ لیول, مڈل لیول اور لوور جو لیول ہوتے ہیں نا وہ. یہ لیولز اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ایک جو مینیجر ہوتا ہے نا ہر انسان کو ڈائریکٹلی تو کنٹرول کر نہیں سکتا. جیسے کہ اسپین آف مینجمنٹ ہے, کہ اسپین آف مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مینیجر جو ہے نا کتنے لوگوں کو افیکٹولی جو ہے نا سپروائز جو ہے نا کر سکتا ہے. عام طور پر ایک جو مینیجر ہوتا ہے نا وہ لگ بھگ جو ہے نا 7 سے 10 لوگوں کو جو ہے نا اچھی طرح مینج کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو آگے یہاں پہ پرنسپل آف اسپین آف کنٹرول کے بارے میں بتایا گیا کہ اس پرنسپل کے مطابق جو ہے نا ایک مینیجر صرف لمیٹڈ جو امپلائز ہوتے ہیں نا ان کو افیکٹولی سپروائز کر سکتا ہے. تو فیکٹرز کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے, فیکٹرز ڈیٹرمائننگ این افیکٹو اسپین کے بارے میں, کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اسپین آف آرگنائزیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مینیجر جو ہے نا کتنے لوگوں کو افیکٹولی سپروائز کر سکتا ہے. تو ٹریننگ کے بارے میں, ٹریننگ آف سب آرڈینیٹس, یعنی کہ اگر کوئی امپلائز ہے نا وہ زیادہ ٹرینڈ اور ایکسپیرینس ہوتا ہے نا تو ان کو کم گائیڈنس جو ہے نا چاہیے ہوتی ہے. اس لیے مینیجر زیادہ تر لوگ جو ہے نا اپنے مینیجر جو ہے نا وہ زیادہ لوگوں کو ہینڈل کر سکتا ہے. کلیئر ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کے بارے میں آگے بتایا گیا کہ ڈیلیگیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ذمہ داری اور اتھارٹی کا جو ہے نا کچھ حصہ, ٹھیک ہے. کلیئرٹی آف پلانس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اچھا, یہ جو فیکٹرز ہیں نا یہ آپ کے شارٹ ٹرم اسکلز کے لحاظ سے تھوڑے سے اہم ہے پڑے, تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تو کلیئرٹی آف پلانس کے بارے میں بتایا گیا امپلائز کو جو ہے نا پلان اور گولز جو ہے نا کلیئر ہونا, تو مینیجر جو ہے نا وہ زیادہ لوگوں کو جو ہے نا مینج کر سکتا ہے. تو آبجیکٹیو اسٹینڈرڈز کے بارے میں بتایا گیا کہ کام چیک کرنے کا جو کلیئر ایک رول ہوتا ہے نا اس کو آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ بولتے ہیں. تو ریٹ آف چینج کے بارے میں بتایا گیا کہ آرگنائزیشن میں چینجز کی جو اسپیڈ ہوتی ہے نا وہ بھی افیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. کمیونیکیشن ٹیکنیکس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اچھی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا اس سے مینجمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایزی ہو جاتی ہے. تو پرسنل کانٹیکٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مینیجرس کو جو ہے نا امپلائز کے ساتھ اتنا کہ کتنا ڈائریکٹ جو ہے نا کانٹیکٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے نا یہاں پہ اپنے جو ہے نا نیڈ آف بیلنس کے بارے میں بتایا گیا کہ آرگنائزیشن میں جو ہے نا بیلنس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ بتایا گیا ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشن ایک کا جو ہے نا ایک الگ جو ہے نا حصہ ہوتا ہے جہاں اسپیسیفک ایک مخصوص کام جو ہے نا پرفارم کیے جاتے ہیں اور ایک جو ہے نا مینیجر اس کو کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ڈیٹرمنٹائزیشن کے اندر جو ہے نا یہاں پہ کچھ پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ بائی نمبر, کہ لوگوں کی تعداد کے حساب سے جو ہے نا ڈیویژن کرنا, یعنی ٹائم یا شفٹ کے حساب سے جو ہے نا ڈیویژن کرنا. بائی فنکشن یعنی کام کے حساب سے جو ہے نا ڈیویژن کرنا. اس کے علاوہ بائی جیوگرافی یعنی ایریا یا لوکیشن کے حساب سے جو ہے نا ڈیویژن کرنا. بائی پروڈکشن یعنی کہ پروڈکٹس کے حساب سے ڈیویژن کرنا. کسٹمر یعنی کہ کسٹمر کی نیڈس جو ہوتی ہیں نا, کسٹمر کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے حساب سے جو ہے نا
डिवीजन करना। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन एक जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक स्ट्रक्चर जहाँ लोग अपने जो है ना रूल्स के थ्रू जो है ना काम करते हैं। तो यहाँ पे ये बात बताई गई, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स के बारे में बताया गया है कि अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप अच्छे तरीके से देखिए, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल रूल के अंदर ये बताया गया कि हर इंसान जो है ना एक मखसूस पोजीशन और ड्यूटी जैसे ड्यूटी परफॉर्म करता है, जैसे मैनेजर जो है ना वो मैनेजिंग का काम करता है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताया गया है कि ऑफिशियल जो रिलेशनशिप होते हैं ना, जो रूल्स के मुताबिक फॉलो किए जाते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में के एम्प्लॉयज को जो है ना जैसे आपस का जो पर्सनल रिलेशन होता है। आगे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंस है, एक जो लेवल होते हैं जैसे टॉप मैनेजमेंट, फिर उसे नीचे जो लोअर मैनेजमेंट होती है। तो आगे ये बात हो रही है। तो उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे लेसन नंबर 15 है डिपार्टमेंट्स के बारे में कि डिपार्टमेंट क्या होता है। डिपार्टमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का अलग हिस्सा, जो एक जहाँ एक मैनेजर जो है ना कुछ मखसूस जो काम होता है ना उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके पास कुछ अख्तियार होते हैं जिसके थ्रू वो काम को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है, तो इसका सिंपल मतलब समझ लेते हैं कि जब सेम टाइप के जो काम होते हैं ना, या सेम टाइप के काम या लोगों को जो है ना एक ग्रुप में रखा जाता है, उसे डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। तो मतलब कामों का ग्रुप जिसको डिवाइड कर देते हैं दिया जाता है, तो उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइम का मतलब होता है कि इसमें जो है ना लोगों को टाइम या शिफ्ट के हिसाब से जो है ना डिवाइड किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल या फिर कंपनी वगैरह में जो है ना टाइम के हिसाब से डिवाइड किया जाता है कि आपको आपने वो फलां टाइम में जो है ना अपनी अपनी ड्यूटी देनी है, तो आपने फलां टाइम में ड्यूटी देनी है। तो एडवांटेजेस के अंदर बताया गया है कि 24 घंटे सर्विस दी जाती है, मशीन और इक्विपमेंट जो है ना ज्यादा यूज होते हैं, इससे जो है ना वेस्ट कम होता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस के अंदर बताया गया कि हर शिफ्ट में ना प्रॉपर एक सुपरविजन नहीं होती, बल्कि ओवर टाइम की पेमेंट की वजह से जो है ना खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आगे जो है ना डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय इंटरप्राइज फंक्शन के बारे में बताया गया है कि इस मेथड में जो है ना डिपार्टमेंट्स जो है ना काम की टाइप के हिसाब से जो है ना बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं प्रोडक्शन या अकाउंट्स या बजट या सेल वगैरह, ठीक है। फिर अगले यहाँ पे जो है ना एक फिगर दी गई है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय इंटरप्राइज फंक्शन। इसके अंदर बताया गया है कि काम को जो है ना ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स भी होती है जो कि प्रोडक्ट्स को की प्रमोशन के लिए यूज होती हैं। फिर इसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होती हैं जो कि जो है ना प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती हैं। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स होती हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होती है जो पैसा और बजट को संभालती हैं, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च वगैरह होती हैं, और सारी चीजें यहाँ पे एक पैराग्राफ एक जो है ना फिगर की सूरत में बताई हुई है। तो आगे जो है ना यहाँ पे इसके जो है ना एडवांटेजेस यहाँ पे बताए हुए हैं कि हर काम जो है ना अपनी जगह होता है, इसीलिए जो है ना सिस्टम क्लियर रहता है, ठीक है। हर काम अपनी-अपनी जगह पे रहता है, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो है ना वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ट्रेनिंग जो है ना देना ईज़ी हो जाता है। डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना वो अपनी टीम को अच्छी तरह जो है ना कंट्रोल कर सकता है। डिसएडवांटेजेस के अंदर बताया गया कि डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो है ना कोऑर्डिनेशन कम हो जाती है, कि मतलब मिलकर काम करने वाली जो चीज़ होती है ना वो कम हो जाती है। तो कोऑर्डिनेशन तो ठीक है, तो नए चेंजेस को जो है ना एक्सेप्ट करने में जो है ना थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो अडॉप्ट नहीं किया जा सकता कोई नई सिचुएशन को। ठीक है। तो इसमें अब मज़ीद भी बताया गया है कि एक कंपनी जो है ना अपनी सर्विस को जो है ना शहरों या रीजन के हिसाब से जो है ना जो डिवाइड करती है ना, तो उसमें भी थोड़ी-सी जो है ना मुश्किल हो जाती है। तो आगे यहाँ पे मज़ीद बताया गया है कि जैसे कि सुई गैस या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है ना वो हर रीजन मतलब हर रीजन के हिसाब से के लिए जो है ना अलग-अलग एक ऑफिस रखते हैं ताकि हर एरिया को जो है ना बेहतर सर्विस दी जा सके। तो ये है जियोग्राफी की डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट बाय जियोग्राफी के अंदर भी यही बताया गया कि सबसे ऊपर जो है ना प्रेसिडेंट होता है जो निज़ामों को कंट्रोल करता है, फिर उसके नीचे काफ़ी सारे तबके होते हैं। तो एडवांटेजेस के अंदर आगे बताया गया, इसके अंदर लोकल मार्केट आते हैं कि हर एरिया की जो है ना ज़रूरत के हिसाब से जो है ना उसको सर्विस मिलती है। ठीक है। तो इसके अलावा बेटर कोऑर्डिनेशन होती है कि एक ही रीजन के तमाम जो है ना डिपार्टमेंट्स मिलकर आसानी से काम कर सकते हैं। या तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है कि कस्टमर और कंपनी जो है ना डायरेक्ट एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कर सकती है। डिसएडवांटेजेस के अंदर बताया गया है कि हर रीजन में जो है ना अलग एक ऑफिस बनाना महँगा हो जाता है, ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है हर रीजन में एक अलग ऑफिस बनाना है तो पैसे तो लगते हैं ना उसपे, तो ये थोड़ा-सा महँगा पड़ जाता है। इसमें इकोनॉमिकली जो है ना खर्च आता है। तो कभी-कभी जो है ना अलग रीजन्स भी सेम जो है ना काम दोबारा अलग-अलग रीजन्स को भी सेम काम करना पड़ जाता है, जिससे रिसोर्सेज़ जो है ना वो वेस्ट होते हैं। सब रीजन्स को जो है ना कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सब इलाकों को जो है ना जितने भी इलाके हैं उन सबको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ज़ाहिर-सी बात है इतने सारे इलाके बनेंगे तो कंट्रोल करना तो मुश्किल होगा ही। ये तो यहाँ पे ये वाली बात बताई गई है। फिर आगे जो है ना यहाँ पे एक कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में बताया गया है। इस सिस्टम में क्या होता है कि कंपनी जो है ना कस्टमर्स के टाइप के हिसाब से जो है ना डिपार्टमेंट्स बनाती है। कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि कस्टमर्स के मुताबिक जो है ना डिपार्टमेंट्स बनाना, इसको कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? कि बैंक में अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर बैंकिंग, रियल एस्टेट लोन्स या फिर इसके अलावा बहुत सारे बैंक आपको पता है नाम होंगे आपके ज़हनों में। तो बैंक के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर इसमें इनके जो एडवांटेजेस है ना तो वो यही है कि कस्टमर जो है ना अपने कि कस्टमर की नीड्स पर जो है ना ज़्यादा फोकस किया जाता है। हर कस्टमर को उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना सर्विस मिलती है। कस्टमर सैटिस्फैक्शन होती है जिससे कस्टमर ज़्यादा खुश होते हैं। स्टाफ एक्सपर्ट
ہوتے ہیں امپلائز اپنے کسٹمر کے ٹائپ کے کام کو جو ہے نا اپنے کسٹمر کے ٹائپ کے کام میں ایکسپرٹ زیادہ بن جاتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ کوآرڈینیشن مشکل ہو جاتی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ الگ الگ کام کرتا ہے, اس لیے جو ہے نا ان کے درمیان آپس میں تعلق جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو فیسلٹیز اور اسٹاف کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو یہاں پہ مطلب فیسلٹیز بھی ویسٹ ہوتی ہیں, اسٹاف بھی جو ہے نا یہ بھی ویسٹ ہوتا ہے کہ اسٹاف یا ریسورسز جو ہے نا یہ مطلب کم ہوتے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ کا پروڈکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب کمپنی جو ہے نا ہر پروڈکٹ کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ بناتی ہے نا, تو اسے ڈپارٹمنٹلائزیشن پروڈکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے یہاں پہ بات کی گئی ہے ڈپارٹمنٹ بائی پروڈکٹ کی. یہاں پہ اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا اوپر اس کو پریزیڈنٹ کنٹرول کرتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا اس کے کچھ نیچے کے طبقے ہوتے ہیں جیسے انجینئرنگ, پروڈکشن, مارکیٹنگ, فائنانس وغیرہ. تو آگے جو ہے نا میٹرکس آرگنائزیشن کے بارے میں بات ہوئی ہے. تو میٹرک آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سسٹم کہ دو سسٹم کا جو ہے نا آپس میں ان کو ملا دینا. یعنی ایک امپلائی کو جو ہے نا اپنے دو باسز کو رپورٹ کرتا ہے. ایک امپلائی کیا کرتا ہے, دو قسم کے باسز کو رپورٹ کرتا ہے کہ فنکشن مینیجر ہو گیا جو اپنے جو ہے نا ڈپارٹمنٹس کو سنبھالتا ہے, پھر پروجیکٹ مینیجر ہو گیا جو کسی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ان کو مطلب ایک امپلائی جو ہے نا وہ ان کو رپورٹ کرتا ہے میٹرکس آرگنائزیشن میں کہ یہ دو چیزوں کی کمبینیشن سے جو ہے نا مل کر بنتی ہے. تو ٹھیک ہے ویورس, آگے جو ہے نا پرابلمس میٹرکس مینجمنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ دونوں مینیجرز ہوتے ہیں نا, اسٹاف اور اماؤنٹ, یہ جو ہے نا ایک کمپلیٹ جو ہے نا کرتے ہیں ریسورسز کو. تو کانفلکٹ اس میں ہو سکتی ہے, تکرار یا جھگڑا ہو سکتا ہے. تو آگے جو ہے نا رول انڈیکیٹو کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں جو ہے نا رول انڈیکیٹو بھی ہوتی ہے کہ مطلب کنفیوژن ہو جاتی ہے, الجھن سی ہو جاتی ہے. امپلائز کو جو ہے نا سمجھ نہیں آتا کہ کس مینیجر کی بات جو ہے نا پہلے مانے. تو امبیلنس آف اتھارٹی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کبھی فنکشنل مینیجر جو ہے نا زیادہ پاورفل ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے نا پروجیکٹ مینیجر. تو اتھارٹی اختیار جو ہے نا فیصلہ کرنے کی جو پاور ہوتی ہے نا وہ برابری کی وجہ سے برابری پر نہیں ہوتی. تو کانسیپٹ کے اندر یہ والی بات کی گئی ہے کہ یہاں پہ کانسیپٹ بتائے گئے ہیں جس میں سب سے پہلے ڈپارٹمنٹلائزیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کو گروپس میں بنا دینا. پھر فنکشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کام کے حساب سے جو ہے نا اس کا گروپ بنا دینا. جیوگرافی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایریا یا سٹی کے حساب سے گروپ بنا دینا. کسٹمر کی مطلب کسٹمر آگے ڈپارٹمنٹلائزیشن بائی کسٹمر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب کسٹمر کی ضرورت کے حساب سے جو ہے نا ایک گروپ بنا دینا. میٹرکس آرگنائزیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ فنکشن اور پروجیکٹ دونوں کو ملا کر جو ہے نا ایک سسٹم بنانا. ٹھیک ہے, تو یہ جو یہاں پہ نام لکھے ہوتے ہیں کافی اہم ہوتے ہیں, آپ نے ان کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہوتے ہیں ان کے فنکشنز کو. تو پاور اینڈ اتھارٹی کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں. لیسن نمبر 16 ہے جس میں اتھارٹی کے بارے میں بتا دیا. اتھارٹی کا مطلب ہوتا ہے اختیار کسی چیز کا. تو یہ کسی چیز کا آفیشیل حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی بندے کا آفیشیل جو حق ہوتا ہے نا یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی پوسٹ کے ساتھ جو ہے نا نہیں ملتا, جو کسی پوسٹ کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ آرمی میں ہے نا اس کے پاس ملٹری کے کافی سارے اختیار ہوتے ہیں جبکہ ایک عام بندے کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو جیسے پرنسپل یا مینیجر کا جو ہے نا حق ہوتا ہے کہ وہ ورکرس کو کنٹرول کرے. یہ والی بات بھی اس میں آتی ہے. پھر پاور کے بارے میں بات ہوئی. پاور کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کو جو ہے نا اپنی بات منوانے کی جو ہے نا صلاحیت رکھنا, چاہے وہ پوسٹ ہو نہ ہو. ٹھیک ہے, بعض لوگ اپنی باتیں اتنی اچھی بنا کے کرتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کی بات مانیں. یہ اس کی پاور ہے, اس کا اچھا اخلاق اس کی ایک پاور بن جاتا ہے. تو لائن اینڈ اسٹاف کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لائن وہ چیز ہوتی ہے. اچھا, یہ ڈیفینیشن آف پاور اینڈ اتھارٹی کی جو ہے نا بہت انپورٹنٹ ہے. یہ ڈفرینس بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو لائن اینڈ اسٹاف کنسپٹ لائن اینڈ اسٹاف کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لائن کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ آرگنائزیشن کا مین کام کرتے ہیں نا اس کو لائن بولتے ہیں. تو ایگزامپل لے لیتے ہیں, پولیس والا جو ہوتا ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا ایک مین کام کر رہے ہیں کسی لائن کا. اسٹاف وہ ہوتا ہے جو لائن والوں کی ہیلپ کرتے ہیں, جیسے کہ بجٹ یا اکاؤنٹ مینیج کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. تو لائن اور کانسیپٹ کی جو ڈیفینیشن ہے یہ بھی آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے. ڈیلیگیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا کچھ کام اور اتھارٹی جو ہے نا کسی اور کو دے دینا تاکہ وہ جو کام ہے نا وہ اسسٹنٹ کو جو ہے نا تاکہ وہ کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرے. مطلب ایک بندہ اپنی رسپانسبلٹی دوسرے کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کو کام کمپلیٹ کرے. اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, جیسے ایک مینیجر اپنا کچھ کام جو ہے نا کسی اسسٹنٹ کو دے دیتا ہے. آگے اسکیلر پرنسپل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آرگنائزیشن میں جو ہے نا آرڈر اوپر سے نیچے تک کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسکیلر پرنسپل میں تو تاکہ جو ہے نا ہر امپلائی کو پتا ہو کہ اس کا جو باس ہے نا وہ کون ہے اور رپورٹ کس کو کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آگے جو ہے نا سب آرڈینیٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہاں سب آرڈینیٹس مطلب یہی ہوتا ہے کہ جونیئر امپلائی اور سپیریئر مطلب کہ جو نظر رکھنے والا بندہ ہوتا ہے, جو گائڈ کرنے والا بندہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ آگے فگر کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا سب سے اوپر جو ہے نا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. اس کے نیچے جو ہے نا الگ الگ مینیجنگ والے جو ہے نا یونٹس ہوتے ہیں. پھر جیسے کہ مطلب ڈائریکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, ریسرچ جیسے کہ ریسرچ اور پبلک ڈائریکٹر, اور اس کے علاوہ پروڈکشن وغیرہ. اور ان کے نیچے جو ہے نا مزید مینیجرز ہوتے ہیں جیسے پرچیز مینیجر, پرسنل مینیجر, فیکٹری مینیجر وغیرہ. تو فنکشنل اتھارٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس کے اندر کیا بتاتے ہیں فنکشنل اتھارٹی کے اندر کہ کسی ایکسپرٹ کو جو ہے نا لمیٹڈ پاور دے دینا تاکہ وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کو جو ہے نا انسٹرکشن دے سکیں. فار ایگزامپل کسی کا خاص کام سے جو ہے نا ریلیٹڈ کسی کو پاور دے دینا, کہ کوئی ایچ آر مینیجر ہے سب ڈپارٹمنٹس کو جو ہے نا اٹینڈنس کے رولس فالو کرنے کا کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی نے کسی بندے کو تھوڑی سی اتھارٹی دی ہوئی ہے اس ٹائم پر. تو ڈیلیگیشن آف فنکشن اتھارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جو باس ہے نا وہ اپنی تھوڑی سی اتھارٹی جو ہے نا کسی ایکسپرٹ کو دے دیتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک ڈیلیگیشن ہے, اس میں جو ہے نا
मतलब डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपना काम या पावर किसी और को दे देना, ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। तो एक्सपर्ट जो है ना सिर्फ स्पेशल काम के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। एक्सपर्ट कौन होता है? किसी मखसूस काम के पीछे इंस्ट्रक्शन देता है। तो बेनिफिट्स ऑफ स्टाफ के अंदर आगे बताया गया है। तो यहाँ पे इस फिगर में भी यही वाली ही बातें बताई गई हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ स्टाफ के अंदर बताया गया है कि एक्सपर्ट जो है ना, ये सबसे बेस्ट एडवाइस, एक्सपर्ट से जो है ना सबसे बेस्ट एडवाइस मिलती है। वो रिसर्च को जो है ना और मज़ीद एनालाइज़ करके जो है ना समझाता है। इसके अलावा वो जो है ना बिज़ी मैनेजर्स का टाइम जो है ना, इससे वो चीज़ भी बच जाती है। जब उनको मशवरा देने वाला एक एक्सपर्ट होता है तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों का तो टाइम बचता ही बचता है ना। तो लिमिटेशन ऑफ स्टाफ के अंदर बताया गया है कि लाइन मैनेजर्स को जो है ना लाइन मैनेजर्स को जो है ना लगता है कि स्टाफ के पास जो है ना प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस जो है ना कम है। ठीक है? स्टाफ सिर्फ एडवाइस देता है, इम्प्लीमेंटेशन लाइन मैनेजर खुद करते हैं। स्टाफ जो होता है ना क्या करता है, सिर्फ एडवाइस दे देता है। बाकी आगे उसको नाफ़िज़ करना, ना करना ये उसका काम नहीं होता। फिर अपना जो प्लान होता है ना, उनका अपना प्लान फ़ेल हो जाता है, तो ब्लेम जो है ना फिर मतलब जब उनको मशवरा दिया जाता है, तो वो जब उनकी बात जो है ना वो गलत साबित होती है ना, तो क्या होता है कि ब्लेम जो है ना वो दूसरों को करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वज़ह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर बताया गया कि डिसीज़न की पावर जो है ना, सिर्फ़ एक बॉस के पास ना हो, बल्कि नीचे मैनेजर्स को भी दी जाती है। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिसेंट्रलाइज़ेशन में पावर को जो है ना बाँट दिया जाता है। ठीक है? नेम ऑफ डिसेंट्रलाइज़ेशन के अंदर बताया गया है कि डिसेंट्रलाइज़ेशन का मतलब होता है कि हर डिसीज़न लेने की का जो अख्तियार होता है ना, सिर्फ़ एक टॉप जो बॉस होता है ना, उसके पास ना हो, बल्कि नीचे वाले जो तबके होते हैं ना, उनके पास भी होना चाहिए। ठीक है? डिग्री ऑफ आगे जो है ना यहाँ पे मज़ीद बताया गया है जो डिग्री होती है ना सेंट्रलाइज़ेशन की, यहाँ पे ना उसके बारे में बताया गया है कि हर ऑर्गेनाइज़ेशन में ना जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना डिसेंट्रलाइज़ेशंस होती हैं, कि ज़्यादा सेंट्रलाइज़ेशन जो है ना बॉस सब मतलब ज़्यादा जो सेंट्रलाइज़ेशन होती है, एक जो बॉस होता है ना, वो ज़्यादा फैसले करता है। जब ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़ेशन होती है, तो मैनेजर्स और एम्प्लॉइज़ जो है ना वो भी फैसले कर सकते हैं। सेंट्रलाइज़ेशन के अंदर क्या होता है कि बॉस ही सारे फैसले करते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइज़ेशन के अंदर क्या होता है कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयी भी फैसले करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो डिफरेंट काइंड्स के बारे में बात की गई है कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात की गई है कि मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही जगह जो है ना, एक ही जगह पे बैठ के काम करे। डिपरमानेंट सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात हो रही है कि मतलब कि एक ही दो डिपार्टमेंट है ना, वो सब काम जो है ना संभाले। फिर फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस का जो है ना सारा काम एक ही जो है ना डिपार्टमेंट संभाले। फिर आगे सेंट्रलाइजेशन एज अ मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा जो डिसीजन पावर है ना, वो टॉप मैनेजर के पास ना हो, बल्कि बाकियों के पास भी हो। तो इसके जो है ना चार वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात हुई है कि काम को जो है ना छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दिया जाए। डिपार्टमेंटलाइज़ेशन के बारे में बात हो रही है कि एक जैसे काम को जो है ना एक डिपार्टमेंट में रखना चाहिए। हायरार्की के बारे में बात हो रही है कि कौन किसको रिपोर्ट करे। कोऑर्डिनेशन के बारे में बात हो रही है कि सब डिपार्टमेंट जो है ना वो मिलकर काम करे। तो यहाँ पे एंड पे जो है ना कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या बात बताई गई, लाइन फंक्शंस के बारे में बात की गई है कि वो काम जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं ना, उनको डायरेक्टली कंप्लीट करने में हेल्प की जाती है। स्टाफ फंक्शंस के बारे में बात हो रही है कि वो फंक्शंस जो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। स्केलर प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है, बॉस एम्प्लॉय जो होते हैं तक जो अथॉरिटी के प्रॉपर मतलब बॉस स्केलर प्रिंसिपल का मतलब यही होता है कि बॉस से एम्प्लॉय तक जो है ना अथॉरिटी की चेन आनी चाहिए। अथॉरिटी बॉस से उसके एम्प्लॉयज तक भी आनी चाहिए। फिर फंक्शनल अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है कि किसी डिपार्टमेंट या पर्सन को जो है ना एक मखसूस काम कंट्रोल करने का हक होता है ना, वो फंक्शनल अथॉरिटी होती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात की गई है, अपनी कुछ अथॉरिटी जो है ना नीचे के लेवल को दे देना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात की गई है कि डिसीजन लेने की जो पावर होती है ना, उसको ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स पर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आगे जो है ना लेसन नंबर 17 अब हम स्टार्ट करते हैं, तो जिसके अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात की गई है। तो डेलीगेशन का मतलब होता है कि जब एक मैनेजर अपना कुछ काम और उसके काम को जो करने की जो पावर जो होती है ना, वो अपने से मतलब मज़ीद जो है ना लोगों को दे देता है। ठीक है? वो अपना काम, अपनी ज़िम्मेदारी दूसरों को दे देता है, उसको डेलीगेशन बोलते हैं। अथॉरिटी डेलीगेशन का मतलब होता है इसके जो है ना 4 प्रोसेस यहाँ पे बताए गए हैं, 4 सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं कि रिजल्ट डिसाइड करना आके सबसे पहले जो है ना मैनेजर डिसाइड करता है कि किसी पोज़ीशन को जो है ना किस पोज़ीशन को क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? टास्क असाइन करना यानी कि फिर उस पर्सन को जो है ना काम या ज़िम्मेदारी दी जाती है जो उसे जो है ना कंप्लीट करनी होती है। ठीक है? फिर अथॉरिटी जो है ना अपने वो प्रोवाइड की जाती है कि काम जो है ना कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी पावर और डिसीजन जो है ना लेने का हक दिया जाता है। रिस्पांसिबिलिटी लेने के बारे में बात की गई है कि आखिर में जो है ना जिस पर्सन को काम दिया गया है होता है ना, वो उसकी जो है ना एक कंप्लीशन जो है ना उसकी ज़िम्मेदारी लेता है। तो आर्ट ऑफ डेलीगेशन के बारे में आगे बात हो रही है, जिसके अंदर बताया गया है रिसेप्टिवनेस के बारे में। ठीक है? इसमें जो है ना इफेक्टिव डेलीगेशन तब होती है कि जब मैनेजर का एटीट्यूड जो है ना पॉजिटिव होता है। आर्ट ऑफ डेलीगेशन का तब होती है जब मैनेजर का एटीट्यूड होता है ना वो पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले रिसेप्टिवनेस को देख लेते हैं कि दूसरों की बात सुनना, कि मैनेजर को एम्प्लॉइज़ को जो है ना मैनेजर को एम्प्लॉइज़ को डिसीजन लेने की जो है ना चांस देना चाहिए। विलिंगनेस के बारे में बात हो रही है कि अपना कंट्रोल जो है ना छोड़ना चाहिए और दूसरों की रज़ामंदी पर भी फोकस करना चाहिए। मैनेजर्स को हर फैसला जो है ना खुद करने की जिद नहीं करनी चाहिए। अलोइंग मिस्टेक्स के बारे में बात हो रही है कि गलतियाँ जो है ना उससे सीखने देना चाहिए। ठीक है? अगर गलती का नुकसान जो है ना ज़्यादा ना हो तो एम्प्लॉइज़ को जो है ना सीखने का मौका
को मज़ीद देना चाहिए, बजाय उसको कि वो डाँटे और उसको जॉब से निकाल दे, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट सबऑर्डिनेट्स के बारे में बात हो रही है कि मैनेजर्स को जो है ना अपना एम्प्लॉइज़ पर यकीन होना चाहिए कि वो जो है ना काम कर सकते हैं। तो गाइड्स टू ओवरकमिंग वीक डेलीगेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें कि मतलब कि एम्प्लॉइज़ को जो है ना बताएँ कि क्या रिज़ल्ट जो है ना चाहिए और कितनी अथॉरिटी है। तो राइट पर्सन सिलेक्ट करें कि काम जो है ना हमेशा उस पर्सन को दें जो उसकी जो है ना उसके लिए सूटेबल हो। तो कम्युनिकेशन मेंटेन करें कि मैनेजर और एम्प्लॉयी के दरमियान जो है बातचीत होना बहुत ज़रूरी होता है। झिझकना नहीं चाहिए बल्कि बातचीत आपस के अंदर एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। तो अच्छा वर्क का जो है ना अच्छा कोई काम करे ना तो उसको इनाम भी देना चाहिए। किसी की परफॉर्मेंस को एप्रिशिएट करना चाहिए। तो और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिग्री ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है। इसमें बताया गया कि अथॉरिटी जो है ना कितनी डेलीगेट करनी है, ठीक है? अथॉरिटी जो है ना किस हद तक दूसरों को देनी है, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कॉस्ट ऑफ डिसीजन यानी कि अगर फैसला जो है ना बहुत महँगा या इम्पोर्टेंट होता है ना, तो जो अपर मैनेजमेंट होती है ना, वो ये डिसीजन लेती है। ठीक है? तो जो अपर मैनेजमेंट होती है ना, वही डिसीजन लेती है। फिर लोअर मैनेजमेंट डिसीजन नहीं लेती। फिर आगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है कि जिसके अंदर इख्तियार देने के बारे में बात हो रही है कि मैनेजर जो है ना अपना काम और डिसीजन जो है ना लेने का हक किसी और को दे देता है ना, ताकि काम जल्दी हो और बेहतर हो। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में ना डेलीगेशन की क्वांटिटी जो है ना डिफरेंट हो सकती है। कॉस्ट ऑफ डिसीजन के बारे में आगे बात हो रही है जिसके अंदर बताया गया है कि ठीक है, ताकि हर बंदा ना अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाए। इसके जो है ना कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे डिफरेंट गोल्स के अकाउंट सिर्फ जो है ना कॉस्ट कंट्रोल को जो है ना इम्पोर्टेंट समझता है और दूसरे गोल्स को जो है ना इग्नोर कर देता है। ठीक है? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो डिफरेंट टाइम थिंकिंग के बारे में बात की गई कि प्रोडक्शन वाले जो है ना अपने जो लोग होते हैं ना वो जल्दी डिसीजन लेते हैं। जबकि जो है ना बाकी लोग थोड़ी प्लानिंग के तहत जो है ना थोड़ा लेट डिसीजन लेते हैं। तो डिफरेंट टाइम थिंकिंग के बारे में बात हो रही है। प्रोडक्शन वाले फिर डिफरेंट जो है ना वर्किंग स्टाइल के बारे में बात हो रही है कि हर डिपार्टमेंट्स का काम जो है ना करने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है। डिफरेंट रूल्स के बारे में बात हो रही है कि कुछ डिपार्टमेंट्स में ना एक स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो किया जाता है। कंक्लूजन के अंदर यही बताया गया है कि डेलीगेशन होती है यानी अथॉरिटी दी जाती है। कोऑर्डिनेशन होती है, सब डिपार्टमेंट्स को जो है ना मिलकर चलना पड़ता है। स्पेशलाइज़ेशन होती है कि काम की जो है ना डिसीजन की जाती है। ठीक है? कॉन्सेप्ट के अंदर बताया गया है आगे के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बताया गया कि अपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के जो प्रिंसिपल कि द आर्ट ऑफ डेलीगेशन है ना कि यानी कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के जो प्रिंसिपल होते हैं ना वो बताए गए हैं। यानी अथॉरिटी देने के जो कुछ रूल्स होते हैं ना वो बताए गए। किसी मैंने फिर आगे बताया गया कोऑर्डिनेशन के बारे में जिसमें आपस में एक-दूसरे के जो ताल्लुकात होते हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर स्पेशलाइज़ेशन के बारे में बताया गया है कि इसे जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि काम को डिवाइड करना और हर पर्सन को जो है ना एक स्किल के मुताबिक जो है ना काम दे देना। तो लेसन नंबर 18 हम स्टार्ट करते हैं तो जिसमें इसका नाम है प्लानिंग। तो प्लानिंग के बारे में हम देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग सबसे पहले यहाँ पे बताई गई है। हाँ, तो प्लानिंग का मतलब समझ लेते हैं कि फ्यूचर में प्लानिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो है ना क्या काम करने हैं, कैसे काम करने हैं और किन रिसोर्सेज़ की जो है ना हेल्प लेनी है। इसका जो पहला इसका पहले से जो है ना इसका इन सब चीज़ों का पहले से एक फैसला करके रख लेना। ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना ये इसकी मीनिंग है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो डिफाइन इसकी यही है कि आगे फ्यूचर में क्या काम करना और किस तरह से करना। तो इस चीज़ का फैसला हम पहले ही लेके रख देते हैं। ठीक है? तो आगे जो है ना प्री अवोयंस के बारे में बताया गया। ये एक फ्रेंच लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि आने वाले वक़्त को जो है ना पहले से देखना या सोचना, ठीक है? तो ये डिफाइन जो है ना आपकी बड़ी अहम है प्लानिंग की तो आपने बड़े अच्छे से रट लेनी है। ये मिड टर्म के सिलेबस में या फाइनल टर्म के सिलेबस अगर आप तैयार करें तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। आपसे लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन देयर लेवल्स। तो आपने जो है ना लॉन्ग के लिहाज से भी इसको प्रिपेयर करना है। आगे लेवल्स ऑफ प्लानिंग के बारे में बात हो रही है कि प्लानिंग जो है ना मुख्तलिफ लेवल्स पर होती है जैसा कि नेशनल लेवल कि जिसमें पूरे मुल्क के लिए जो है ना प्लानिंग की जाती है। प्रोविंशियल लेवल यानी कि जिसमें जो है ना एक मखसूस जो है ना सूबे के लिए प्लानिंग की जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कि जो है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग की जाती है। डिपार्टमेंट लेवल की किसी डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग की जाती है। यूनिट लेवल की छोटी जो है ना टीम या यूनिट्स के लिए प्लानिंग की जाती है। पर्सनल लेवल के जिसमें जो है ना अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ की प्लानिंग की जाती है। 4 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया कि इसमें सबसे पहले पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया कि हर प्लान का जो मकसद होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो है ना अचीव करना होता है। इम्पोर्टेंस इन मैनेजमेंट के अंदर बताया गया कि प्लानिंग जो है ना वो अपने मैनेजमेंट का जो है ना एक पहला स्टेप होती है। ठीक है? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये वाली बात बताई गई है। तो आगे हम देख लेते हैं। आगे यहाँ पे ये फिगर है, ये फिगर जो है ना ये आपसे एग्ज़ाम्स में नहीं पूछेंगे, ठीक है? तो इसमें सारी वही बातें की गई हैं जो हमने पहले पढ़ाए हैं। तो यहाँ आगे जो है ना यहाँ पे परवाइज़िव नेस के बारे में बात की गई। इसका मतलब होता है कि प्लानिंग जो है ना हर लेवल पर ज़रूरी होती है, चाहे ऑर्गेनाइज़ेशन छोटी हो या बड़ी। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में बात की गई है कि अच्छे प्लानिंग से जो है ना रिसोर्सेज़ बेहतर हो सकते हैं और हमारा जो मकसद है ना वो कम टाइम में जो है ना हासिल हो जाता है। तो अब यही बात बताई गई है। तो
फिर आगे जो है ना व्यूवर्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में बात हो रही है, जिसमें बताया गया है पर्पस और मिशन के बारे में बताया गया कि मिशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक पर्पस होता है ना, जो बेसिक चीज होती है, बेसिक रीजन होती है कि कौन किस लिए एग्जिस्ट कर रहा है, कौन किस लिए छोड़ के जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल है जो हाईवे होती है ना, उसकी अथॉरिटी का मिशन होता है कि हाईवे बनाना और मैनेज करना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव गोल्स के बारे में बात की गई है कि ऑब्जेक्टिव गोल्स का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि वो टारगेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ प्लान्स जो है ना, ये आपके लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी आ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकते हैं, तीनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिए। तो ऑब्जेक्टिव और गोल्स में ये बात की है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि वो तरीके जो ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का जो गोल होता है, कंपनी का जो मकसद होता है, वो होता है प्रॉफिट को हासिल करना, या एक साल में जो है ना 2000 प्रोडक्ट्स बनाना, ठीक है, ये उसका मकसद है। तो ये उन्होंने मकसद बनाया हुआ अपने फ्यूचर प्लानिंग का। स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है कि इसका मतलब है कि बड़ा प्लान या जो गोल जो है ना, उसको अचीव करने के लिए दोबारा जो है उसको अचीव करने के लिए ना एक बड़ा प्लान बनाया जाता है। इसमें जो है ना सोचा जाता है कि रिसोर्सेज को जो है ना कैसे यूज करना है और कंपटीशन का सामना ना किस तरह से करना है, ये चीज सोची जाती है। इसके ना पॉलिसीज के बारे में बात की गई है कि ये वो रूल्स होते हैं या गाइडलाइंस होती हैं जो डिसीजन लेने में जो है ना हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हुकूमत जो है ना, मतलब कि कोई चीज़ सेल करके जो है ना किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है। जैसे पीआईए का आपको पता है कि पीआईए को जो है ना सेल कर दिया गया था और उसको जो है ना एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया था। तो हुकूमत ने क्या किया है कि एयरलाइन पूरी बेच के जो है ना उसको प्राइवेट कर दिया। तो ये होती है पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्रोसीजर्स के बारे में बात हो रही है कि इसका मतलब होता है कि किसी काम को जो है ना करने का जो प्रॉपर तरीका होता है ना, उसको प्रोसीजर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट बनाने का प्रोसीजर, कोई काम करने का सीक्वेंस वाइज एक तरीका होता है। रूल्स के बारे में बात हो रही है कि अगर रूल्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस रूल्स जो है ना एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनमें बताया जाता है कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स हो गए वगैरह। तो कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये वाली बात की गई है। इसमें सबसे पहले जो है ना अपने प्लान्स के बारे में बताया गया है कॉन्सेप्ट में, कि इसका मतलब होता है कि फ्यूचर के काम का जो है ना एक रिटन एक रोड मैप बना लेना कि हमने फ्यूचर में ये काम करना है। परवाइजिवनेस ऑफ प्लान का मतलब होता है कि प्लानिंग को ऑर्गेनाइज कर देना कि किस लेवल पर प्लानिंग जो है ना किस टाइप की होनी चाहिए। कंट्रोल का मतलब है कि हम जो है ना स्टैंडर्ड्स हम सेट कर देते हैं और परफॉर्मेंस को जो है ना चेक करते हैं कि काम सही हो भी रहा है या नहीं। तो ये जो है ना ये इसके कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है ना व्यूअर्स, ये टाइप्स ऑफ प्लान्स वाला टॉपिक जो है ना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। तो आज का वीडियो में हमारा मिड टर्म का जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है व्यूअर्स। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जाया करें। इससे हम लोगों की हौसला अफजाई होती है और इंशाल्लाह मेरी फ्यूचर वीडियोस जो होंगी ना, वो इससे भी मज़ीद बेहतर होंगी, बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी इससे भी। तो मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा और जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा मैं जो है ना व्हाट्सएप चैनल में भी आप लोग ऐड हो जाएँ, जिसके अंदर स्टडी के रिलेटेड जो है ना आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे एक नई चीज़ लेके आई हूँ। और जो फुल बुक इन वन वीडियो वाला लेक्चर है ना, एक यूट्यूब पे पहले कभी किसी और ने नहीं दिया, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और इस पे काफ़ी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरे लेक्चर को पूरा देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।